I formally welcome Professor Dr. Taiba Kawabad, Head of Pediatrics in Services Institute of Medical Sciences. She is specialized in handling the most complex situations for the newborn, coordinating their care and impacting other people's life. Her dedication to health and well-being of our youngest patient is truly remarkable. Please join me in welcoming Professor Dr. Taiba Kawabad. Professor Humayun, dear colleagues and students, Assalamu alaikum. It is indeed a pleasure to be here. Professor Humayun is just like an elder brother to me, and we have many happy memories of working at Services Institute of Medical Sciences. And it is a great pleasure for my team and myself. My team includes Professor Asif and Sikandar Dayal. मुझे आपकी तरह नॉमिनल लिफेजी है थोड़ा सा So the session today is very useful because we're going to deal with the neonatal respiratory problem. And Professor Humayun ने आपको already दे दिया an overview of respiratory physiology, which is a very important topic. And सिकंदर आपको याद है जब हम topics decide कर रहे थे neo symposium की, तो मैंने कहा था कि somebody should actually address this topic. So I'm really glad that this has been addressed. और as usual technology is failing us, but never mind. अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि what do you know about because the topic we're going to talk about is all interconnected. आपको surfactant administration के तरीके बताएंगे, and obviously this is surfactant needs to be administered. सबसे common उसकी indication क्या होती है? Respiratory RDS. RDS की etiology क्या है? Prematurity. Yes, but होता क्या है? Surfactant नहीं पता. Surfactant. So many times RDS is also known as SDLD or surfactant deficiency lung disease, and also known as hyaline membrane disease. So hyaline membrane disease क्यों कहते हैं ऐसे? Because of the extracellular matrix से जो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं जाके डेब्री वो उसको हाईलाइट जी चेंज करते शाबाश. हैं. तो अगर इन लंग्स की आप वो लेके माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बनाएं और हीमोटॉक्सिन डिओसिन से स्टेन करें, तो it is very pinkish, and you can see hyaline membranes within the alveoli, so therefore it is known as hyaline membrane disease. तो अब मुझे कौन बताएगा कि why does it happen? होती क्यों है? So it's an interactive session. आप बेशक मुझे रोक लेना जब भी आप रोकना चाहो. होती क्यों है? क्योंकि surfactant deficiency So surfactant deficiency. So the key word here is surfactant, and that makes the question: what is surfactant? लाइपोप्रोटीन है जो Glycoprotein है कि phospholipid है? लाइपोप्रोटीन है जिसमें Lipoprotein फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है. It has phospholipid parts and it has protein parts. So does anybody know? So आपको and it's not uniform. Different types of phospholipids, phosphatidylcholine, phosphatidylinosytol, and as a baby develops in utero, the amount of surfactant in the lung increases. It also has proteins. नाम कौन बताएगा मुझे proteins का? नहीं वो They तो are known as फॉस्फोलिपिड apoproteins. Apoproteins. और कितनी type की apoproteins हैं? Four types. So you have apoproteins that are labeled A, B, C, and D. What does the surfactant do? Why is it so essential? क्योंकि लंग की लाइनिंग बनाता है और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो लंग कंप्लायंस इंक्रीज. शाबाश. So it reduces the surface tension. और अभी आपसे दो सवाल मजीद पूछूंगी because आपका तो बड़ा knowledgeable group है. Surfactant जो है वो आता कहाँ से? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. Type 2 cells which are known as Clara cells. उनकी shape कैसी होती है? They are cuboidal cells, and these are little cuboidal cells that are found within the alveoli. Alveoli chiefly is composed of flattened epithelial cells. जो alveolar cells होते हैं वो flat इसलिए होते हैं because they form part of the respiratory membrane, and a lot of gas exchange has to take place. तो obviously अगर gas exchange होनी है या even fluid exchange होने हैं, electrolyte exchange होनी है, as happens in the kidneys जहाँ पे आपका filtration membrane होता है, these membranes have to be very thin, and the membranes have to be adjacent to blood capillaries. ठीक है? तो अगर आप alveoli fully mature alveoli का cross section देखें, ये भी होती है तो आपको दिखा देती हूँ. तो you have these balloon-like structures with flattened epithelium, and interspersed within them are cuboidal cells. चलिए, thank you. No conflict of interest. जैसे पैसे नहीं मिल रहे इस लेक्चर में.
Key points that we're going to study are stages of lung development, surface tension and surfactant, जो मैंने आपके साथ discuss करी. And then I will talk a little bit about updates on how to manage respiratory distress, which is the latest European consensus guidelines. तो ये मैंने आपके साथ कर दी है. Obviously, you know, the more preterm a baby, the more the incidence of RDS. Although very rarely it can also happen in term babies. Although considered a disease primarily of preterm babies, और ये मैंने जो एक लाइन लिखी है आप सबको perspective में करने के लिए, that the mortality in low and middle income countries as in ours is 10 times as higher as in the more advanced countries. The reason obviously being that neonatal care is intensive care. It's very highly technical dependent. आपके ventilators पे depend करती है, आपकी monitoring पे depend करती है. तो जहाँ पे ये चीजें बेहतर होंगी वहाँ पे survival बेहतर होगा. However, I think हमने कुछ सालों में we've come forward by leaps and bounds. आपके बहुत से training sessions शुरू हो गए हैं. The use of ventilators and respiratory care has seen improvement. तो पाकिस्तान में भी hopefully और जब तक आप जाओगे सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी. जब मैं आपसे पूछ रही थी respiratory membrane का और alveolar cells का, तो it's good if we look at the stages of development. तो बेटा जो lungs है ना वो develop होते हैं obviously as a fetus grows. और ये आप देखो initially the development that takes place is of tubular structure. So trachea develops, the bronchi develop, the bronchioles develop. ये जो आपके conducting passages हैं, they are non-respiratory passages, ठीक है? So अगर कोई baby यहाँ पे deliver हो जाएगा, तो वो या यहाँ पे deliver हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई respiratory passages, just as conducting passages. जब हम ventilate भी कर रहे होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? We say this is what space? This is dead space, because no gas exchange takes place here. So essentially, इस stage में तो these lungs are incapable of producing any ventilation. जो बच्चा आगे fetus develop होता है, passes from embryonic to pseudoglandular to canalicular. Canalicular stage में सबसे पहले जाके आप देखते हो ये rudimentary से alveoli बनना शुरू हो जाते हैं. In the saccular phase, which is around 32 weeks के करीब, you can start seeing these alveoli, but these are primitive alveoli. And later on they form these clusters और उसके अंदर septation होती है, so you have groups of alveoli that are communicating with each other. It's very interesting to note that lung development continues postnatally. So brain development continue करती है ना, तो lung development capacities की alveolar formation continues until 2 years of age. Okay, ये मैं जो आपसे बात कर रही थी, so ये thin cells जिनको हम type 1 cells कहते हैं, these are very thin cells. ये cells के इस तरफ are your capillaries that enable gases exchange. इस तरफ आपकी air है जो आप breathe in and breathe out कर रहे हो. And here it is placed between these flat cells, like these tubercle type 2 cells or Clara cells जो surfactant बनाते हैं. And as you very rightly said, surfactant is a phospholipid. तो ये Golgi apparatus में बनती है, then it's extruded within the cell surface. और एक दफा जब इसका molecule निकल आए तो it's broken down and it's recycled. Recycled होके इसके components get reabsorbed, get resynthesized. Initially जब ये बनता है तो बड़ा crumpled structure होता है, ठीक है? इस तरह करके एक मोड़ा थोड़ा सा धागा सा है. And it is the job of the 4 apoproteins that I mentioned in the composition. ये surfactant का जैसा हमने कहा कुछ इसका protein part है, but ज़्यादा इसका phospholipid part है. And जो मैंने आपको कहा था very tight skin है. तो ये जो protein part है ना, जो particularly surfactant protein B and C, वो जो छोटा सा धागा पड़ा होता है उसकी ends पे लग के उसको यूं spread out करते हैं, ठीक है? So it spreads it out on the inner surface of the alveoli. So what you have is what we call typically a lipid bilayer, ठीक है? ये उसको फैला के उसने अंदर बिछा दिया. And now that we said the role of surfactant is to decrease the surface tension. And this is exactly what it does. So वो situation जहाँ पे surfactant नहीं बन रहा because the lung is premature, because इसके type 2 Clara cells develop नहीं हुए, because alveoli develop नहीं हुए, उनमें RDS की picture आएगी. लेकिन imagine करो अगर ये surfactant यहाँ तक सारा कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन apoprotein B और C नहीं है जो उसको spread out कर रहे हैं, तो भी RDS की picture develop होगी. And these are those rare cases
of RDS which are seen in term babies, and these are familial. And I have seen a family जिसमें term बच्चा पैदा होता है, ground glass appearance, surfactant देते हो ठीक होता है, फिर ground glass appearance, फिर surfactant देते हो, फिर, and obviously these babies won't survive because you can't continue giving surfactant their entire lives. ठीक है? So these are those rare cases. टर्म में वैसे भी surfactant deficiency हो सकती है, hypoxic हो गया या pneumonia हो गया, but these are those rare cases of surfactant protein B and C deficiency that can give rise to RDS like picture. So that begs the question, हम जिक्र करें surface tension. Surface tension, what is surface tension? सामने लिखा. Surface tension is why a few drops of water become globular. Because the molecules of the fluid have this inherent property to collapse on each other and acquire the smallest possible volume. और वो उसी सूरत में possible है कि वो globe की शक्ल में आए. So how many of you have seen mercury thermometers that get broken? सारे देखे ना? तो mercury क्या होती है? छोटे उसकी globules बन जाते हैं that kind of travel from here. It never kind of spreads out. So surface tension कितनी है will vary with different liquids. Mercury की बहुत ज़्यादा है. Mercury को कभी मैंने sort of सवाए उन छोटे-छोटे particles के because very quickly वो droplets बना लेती है. That's true for water as well. ये और जब ये इस inherent property की वजह से एक छोटा सा globule बनाती है, तो इसकी जो पानी की surface होती है ना, इसके ऊपर almost elastic properties आ जाती हैं. और आप में से कितने ने देखा हुआ है कि चूंटी या कीड़ा इस पानी के drop के ऊपर फंसा हुआ, वो effort कर रहा होता है उससे निकलने में. So it's really quite a lot of force that's causing this globule to collapse. This is exactly what happens in this alveoli. अगर ये lipid bilayer यहाँ पे ना हो, तो liquid layer तो है ना, fluid की एक layer तो है. This fluid layer is going to cause the alveoli to collapse completely because that is the property of water saline जो हम सारों की surfaces को line करता है. It collapses completely. तो जब ये completely collapse करता है, तो क्या होता है? तो जिस तरह इसको निकलने में मुश्किल हो रही है ना, तो उसको alveoli को re-expand करने में मुश्किल होती है. तो alveoli को re-expand किसने करना है? वो बेबी जिसके अंदर वो lungs हैं. आप में से कितनों ने balloon को blow किया है? balloon सारों ने blow किए ना? Have you noticed when is it easiest to blow a balloon? In the beginning में very difficult. जो balloon का size बढ़ता जाता है क्या होता है? Easy उसको easy होता जाता है उसको blow करना. तो आपका functional reservoir capacity क्या करती है? Do your alveoli collapse completely at the end of an expiratory effort? No. आप समझ आइए क्यों completely collapse नहीं करते? Because they are lined with surfactant, which is countering the surface tension, which prevents this fluid-lined cavity from forming a tight drop, so that you don't have to exert so much pressure. इसी we are unaware of breathing, because हमारे सारे जो alveoli हैं, there are tiny balloons are held in a state of semi-inflation, ताकि हमें वो जोर न लगाना पड़े. तो अब आपको समझ आ रही है कि प्रीटर्म्स के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है सांस लेना. नंबर 1, poor lung development. कहीं वो सेक्युलर स्टेट के नारिकुलर स्टेट में फंसा हुआ है. एल्वेओलाई रीड के डेवलप नहीं हो रहे कोई खास. एल्वेओलाई डेवलप भी हुए हैं तो क्लारा सेल्स नहीं है जो अराउंड 32 वीक्स बनने शुरू होते हैं. सर्फैक्टेंट नहीं है. अच्छा चलो अगर टूटा पचा सर्फैक्टेंट आ भी गया तो लंग वॉल इतनी कंप्लायंट है कि जब भी वो इनहेल करता है. By the way, at this point, you know what the basic difference between positive pressure ventilation and natural ventilation is? हम जो naturally breathe करते हैं, is it positive pressure or negative pressure? Negative pressure. It is negative pressure. ठीक है, that's ये याद रखो ये basic difference है between artificial ventilation, when air is pushed into the lungs, so it's a positive pressure ventilation, and natural ventilation, we generate a negative pressure. Negative pressure generate करने के लिए क्या जरूरी है? Diaphragm नीचे, ribs बाहर की तरफ हो, ताकि आपकी pleural space में negative pressure generate हो, ताकि atmospheric pressure, lung pressure, pleural pressure से ज़्यादा हो जाए, and then air rushes in passively. That's the mechanism. ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो chest wall है और आपकी जो ribs हैं, they are stiff structures. अगर वो stiff नहीं होंगे और लिफलिफे होंगे, जिस तरह के जिसको हम
टेक्निकली कहते हैं कि वेरी कंप्लायंट और सॉफ्ट चेस्ट वॉल जो प्रीटर्म बेबीज की होती है, यू नो दे हैव कार्टिलेजेस फॉर मसल्स इनके बहुत थिन थिन। तो होता क्या है, होता ये कि जब भी वो ये एफर्ट पुट इन करते हैं, दे कांट जनरेट दैट नेगेटिव प्रेशर, उनकी चेस्ट वॉल ही अंदर सकिंग हो जाती है, सो दैट नेगेटिव प्रेशर जस्ट कैन नॉट बी जनरेटेड बिकॉज द चेस्ट वॉल इज वेरी सॉफ्ट एंड इट कांट बी स्टिमुलेटेड। उसके बाद वो आप दबा उनको रिसस्टेट करना शुरू करते हो, पहले वो हाइपॉक्सिक होते हैं, फिर आप उनको हाइपर ऑक्सिक करते हो, फिर वो हाइपर कापिक होते हैं, एसिडोटिक होते हैं, फिर आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करते हो जिससे लंग्स आर्टिफिशियली एक्सपैंड होते हैं, उस वॉल्यूम की वजह से लंग की लाइनिंग में ट्रॉमा शुरू हो जाता है विच इज वॉल्यूम ट्रॉमा। जब आप वॉल्यूम इंसर्ट करते हो, बैरो ट्रॉमा जब प्रेशर चेंजेस आप उस डेलिकेट मेम्ब्रेन की करते हो, तो ये सारी फिर सेकेंडरी इंसल्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो you can imagine how difficult it becomes for a preterm baby to breathe. It's a very sad situation to be in. सांस ही नहीं आ रहा, ठीक है, because there are all these factors that are working against you. Okay, so this is a diagram that I really like because this shows a preterm lung and this shows a term lung. तो आप देख रहे हो इसमें क्या फर्क आ रहा है? आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज हो रही है। प्रेशर को जितना नेगेटिव, इतनी जोर से सांस लोगे, जितना इंट्राथोरेसिक प्रेशर को नेगेटिव करोगे, उतनी ही लंग वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर तो बहुत कंप्लायंट लंग्स है तो शुरू में तो जो शुरू का बलून है जिसको फैलाना मुश्किल हो रहा है ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ये आपने 10 का प्रेशर -10 का प्रेशर एक्सर्ट कर लिया तो थोड़ा सा लंग एक्सपैंड हुआ, लेकिन जब ये बलून थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है तो वेरी लिटिल चेंज इन प्रेशर विल इन्फ्लेट द बलून। लेकिन ये गरीब प्रीटर्म का जो लंग है ना, जो स्टिफ है, मैसिव प्रेशर चेंज आप कर रहे हो लेकिन लंग इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। सो जब आप वेंटिलेशन देख रहे होते हो और लंग लूप्स देख रहे होते हो, सो दीस आर काइंड ऑफ लंग लूप्स, एंड ये लोअर लिम्ब रिप्रेजेंट्स द इंस्पिरेशन एंड देन एक्सहेलेशन ऑब्वियसली इज अ पैसिव प्रोसेस। उसमें किसी को बस रिलैक्स करना होता है, द एयर गोज आउट इटसेल्फ। आप नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करना छोड़ दें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर बराबर होने लगता है, तो जो इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स, जो आपने लेयर की होती है वो पैसिवली एक्सहेल हो जाती है। Okay, so this diagram very nicely illustrates कि basically मसला क्या होता है lung inflation में। With this background in mind, I will now go on to the updates क्योंकि मुझे पता होता है residents का सवाल ये होता है चलो ठीक है करना क्या है जब प्रीटर्म बेबी आ जाए, ठीक है। So अब वाला जो पोर्शन शुरू हो रहा है ना, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, so you can have a better understanding of what we want to talk about. So अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो ये है कि हमने करना क्या है preterm baby की respiratory support के लिए। So whatever data I'm going to share with you is taken out of European consensus guidelines. आप में से किसी को पेपर चाहिए होगा मेरे से ले लेना, वो late 22 में, that's the latest guidelines of what to do, the latest क्या कहना चाहिए उसके evidence based guidelines on what to do for respiratory support, ventilatory support of a preterm baby, और इसमें काफी concepts ऐसे हैं जो change हुए हैं, I would like you to know about it. So पहला वाला part prenatal care, this is just for you to know। मैंने ये slide लगाई है कि actually prevent prematurity. You want to prevent RDS, prevent prematurity, which is strictly not our domain. It is the domain of the obstetrician. लेकिन आपको कुछ idea होना चाहिए। और मैं मोटी बातें आपके साथ share कर देती हूँ। अगर आप maternal nutrition को improve करेंगे, teenage pregnancy को prevent करेंगे, pre-eclampsia के लिए early screen करेंगे, inter-pregnancy spacing is ensured, and in case of IVF, single embryo transfer, because the obstetricians have a tendency to transfer several embryos, 4-6 embryos, तो obviously वो बच्चे उतने preterm develop होते हैं and the chances of RDS increase. And then use of progesterone, because ये भी अब guidelines में है कि women who are prone to have preterm deliveries, have shortened cervix, are helped by local progesterone application. So, and then this is very important that we all must insist on in utero transfer. So, if there is a preterm pregnancy, और सारे अस्पतालों में होता है, the hospitals may not be equipped to deal with a preterm baby, but the obstetrician doesn't care. उन्होंने बस delivery करनी है और आपके वाले करने हैं. So, this is why you need to have this continuous communication with the obstetrician. The best way of transferring a preterm baby to a better center is in utero. डिलीवर होके ट्रांसफर नहीं उसको करना, मदर को ट्रांसफर करना, ओके। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी शुड नो कि उनकी कैपेसिटी न्यूनेटल यूनिट की कितनी है, और अगर एक खास
gestation rate से कम में, then there's no problem. सारी दुनिया में ऐसे not every center can be a level 3 tertiary care center. Insist that this lady should be transferred. ये नहीं कि delivery यहाँ पे करके बच्चा आपके वाले करनी और फिर बच्चे को आप transfer कर देते हो. That's always more risky. And then antibiotics for preterm rupture of membranes. Other things that are being used that you should be aware of is MagSafe, like magnesium sulfate in less than 32 weeks of gestational age. अगर women go into labor, अपनी perinatal meeting में अपनी obstetrician के साथ करें. This has a protective effect on brain damage. So cerebral palsy के chances को decrease करती है. Tocolytic drugs to buy time. And prenatal steroids, because this is one of the things that has changed the outlook of prematurity, is giving mother steroids. और इसकी बहुत सी details हैं, I won't go into the details of less than 34 weeks. It is recommended कि बाहर के betamethasone या फिर dexamethasone दी जाती है 2 doses 12 hours apart. That is good for 24 to 7 days. 7 days के mother की labor हो गई, 7 days से मामला आगे चला गया, 14 दिन बाद फिर आ गई labor. You can repeat a second dose of steroid provided the gestation is less than 32 weeks. 32 weeks से ऊपर होगी तो दूसरी डोज नहीं देते, उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं स्टीरॉइड्स देने के फायदा कम है. ओके, अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है. Now, before I go on to discuss all this, मैं आपको क्रक्स में दे देती हूँ न्यू preterm ventilation का concept क्या है. The concept of preterm ventilation is to minimize harm. So we are now focused on gentler ventilation strategies, on the use of non-invasive ventilation, on avoiding mechanical ventilation as far as possible, and then extubating the baby as early as possible. So do no harm वाला principle यहाँ पे अब आ गया है. Help the baby maintain ventilation but do no harm. And it's very interesting, और मैं हमेशा से कहती आई हूँ पाकिस्तान में non-invasive ventilation is now preferred. Invasive ventilation मैंने आपको कहा ना positive pressure ventilation. जब भी आप air forcefully pushing out करोगे lung damage होगा. Non-invasive ventilation is actually not in the sense आप force से air pushing and out नहीं करें, आप baby की अपनी ventilation को यूटिलाइज करते हुए उसको सपोर्ट करते हो. लेकिन जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन आपकी उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली CPAP जिसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? बेबी को जिसको आप CPAP लगाते हो, व्हाट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट? अपनी ब्रीदिंग होनी चाहिए ना उसकी. अगर बेबी एपनिक है, ब्रीद नहीं कर रहा, फिर तो CPAP नहीं कराते, फिर तो आपको उसको वेंटिलेट करना ही करना. So remember that's the first prerequisite. Humidified high flow की और CPAP की बेबी की अपनी respiratory effort होनी चाहिए, supporting that respiratory effort. Okay. So अब जो जरूरी है is deferred cord clamping. इसका क्या फायदा? What do you mean by deferred cord clamping? Delayed cord clamping. Okay. So अब NRP में भी आ गया newborn resuscitation program, इसमें भी cord clamping को आप delay करें. Preferably जब बच्चा पहला breath ले ले उसके बाद cord को clamp करें. It's now recommended 30 to 60 seconds. NRP की guidelines है अगर baby trouble में quickly clamp the cord, bring the baby to the resuscitator. But now in other parts of the world they especially designed resuscitation trolleys जो कि mother के बिल्कुल पास लग जाती हैं ताकि आप अपनी resuscitation करते रहें और कोशिश करें कि cord को late clamp करें. अगर आप early cord नहीं clamp कर सके तो there are guidelines to say कि आप cord को milk कर लें. But not less than 28 weeks. अगर 28 weeks के कम के बच्चे के आप cord को milking समझते हो, clamp करके तो फिर उसको निचोड़ देते हैं जो हमारी बहुत सी midwife करती नहीं है. Less than 28 weeks में this procedure has been associated with IVH. Otherwise अगर आपको बच्चे को जल्दी लेके जाना पड़े माँ से लगा करके जल्दी cord clamp करके, and provided this baby is above 28 weeks then you can milk the cord. For spontaneously breathing preterm babies, there's a lot of work on CPAP. So start these babies on CPAP. CPAP है डॉक्टर हुमायूं यहाँ पे आपके पास? CPAP कोई Bubble CPAP is equally good. तो अगर एक बेबी जो preterm deliver हुआ है and is showing signs of distress, so now what is recommended is कि आप उसको labor room में CPAP पे डाल दें. And you start off with a pressure of 5 to 6 centimeters of water. 5 to 6, that is your starting pressure.
ऑल्दो इसकी वो there's nothing to say pressure के आप 9 तक भी जा सकते हो, but usually the starting pressure is 5 to 6 centimeters of water. अगर ऑब्वियसली बच्चा प्रीटर्म डिलीवर हुआ है जो ट्रबल में है, वो ब्रीथ नहीं कर रहा, फिर आपने क्या करना है? फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन जी एप्निक है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन एप्निक है तो आपने लंग्स इन्फ्लेट करने, गोल्डन मिनट का कॉन्सेप्ट है ना कि वो आप उसके लंग्स इन्फ्लेट करें. लंग्स आप किस तरह से इन्फ्लेट कर सकते हैं? जी बैगिंग से. शाबाश, ज़्यादातर हम बैगिंग करते हैं. और अच्छा, अब इसमें जो नई गाइडलाइंस है वो कह रही है कि टी पीस इज बेटर देन सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग. दिस इज अ टी पीस, मैं भी आपको भी दिखाती हूँ. सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को नॉर्मल बैग है जो लंबू बैग जिसको आप कहते हो, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उनके साथ ये मैनोमीटर नहीं होता. बहुत से बैग से साथ मैनोमीटर अटैच है. सो टी पीसेस के साथ ये मैनोमीटर होता है एंड इट हेल्प्स यू एडजस्ट योर पिप एंड पीप. तो जहाँ पे तो आपके पास और नहीं है तो आप बैग यूज करो, लेकिन it is preferable to have a T piece where you can see what the figures are, जिसमें आप inflation रहते हैं. What is recommended is कि 20 to 25, but chest rise देखें, improvement in saturation देखें. For a term baby you can go up to 30 centimeters of water. और अब जो नई चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि instead of doing face mask, you do nasal mask के साथ nasal inflations करें. Because face mask can cause stimulate the trigeminal nerve and cause reflex bradycardia. इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास nasal mask तो जो हर जगह नहीं है, but because we are discussing updates, just for you to know, nasal masks are available. इतनी freely available नहीं है, but this is a preferable method. Nasal mask और उसके साथ आप controlled breaths deliver करें. So अगर बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, irregularly breathe कर रहा है, तो before you stick on your CPAP, आप इसको inflation breaths दें. पहले inflation breaths में हम बताते थे sustained inflation breaths. Those are harmful. Sustained inflation breaths किस-किसने सुनी है? कि पहले NLS करते थे ना, newborn life support, तो हम कहते थे sustained inflation breaths, जिसमें आप forcefully for a few minutes उसको hold, for a few seconds hold करते थे. That's not recommended. So जिस तरह आप बस inflation breaths दें, sustained inflation breaths ही दें. So breathing उसकी जो है आपने वो करनी है, lung inflate करना है और उसके बाद उसको if he starts breathing then you start on nasal CPAP. ये इतनी वीडियो चलेगी कि नहीं, लेकिन anyway यहाँ से आप जो है उसकी पीप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो. ये आपको दिखा दो कि तो है, ये आपके पास है, आप लेकर आए हो, फिर भी दिखा देते हैं. ये आसिफ ही इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. आसिफ याद है जब ये वीडियो बनी थी? चलो बेटे कोई बात नहीं चलती तो. और इसके मैनोमीटर के ऊपर ना ये आप देख लो जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे आप डेंजर जोन्स रीच कर रहे हो, यहाँ पे आपको वार्निंग है. सो ग्रीन जोन इज सेफ, यहाँ तक आप प्रेशर ले. दिस इज यूजुअली 25 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. तो आप इन डायल्स के साथ पिप और पीप दोनों सेट कर सकते हैं. ठीक है जी, चलो जी अभी चल रही है. ठीक है, अब आगे चलते हैं इसको. अच्छा, रिमेंबर यू हैव टू यूज हीटेड ह्यूमिडिफाइड गैसेस. ड्रायर से नहीं वेंटिलेट करना. हीटेड टू अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100% ह्यूमिडिफाइड. और आपने ब्लेंडेड यूज करनी है एयर ऑक्सीजन मिक्सचर. जो आपका एनआरपी है उसमें इस तरह का टेबल दिया हुआ होता है जिसमें बताया हुआ होता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पे कितनी सैट्स आपने अचीव करनी है. डू नॉट एक्सीड दी सैचुरेशन. धड़ाधड़ उसको बैगिंग की जरूरत नहीं है. इफ इज ऑलरेडी अचीविंग दी सैचुरेशन एंड बाय द वे इट इज रिकमेंडेड कि जब आप प्री टर्म को भी रिससिटेट करें तो हैव योर मॉनिटर, सम फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस जो आपको सैचुरेशन बता सके. अदरवाइज पुराना तरीका आप रफली उसके कलर से और चेस्ट राइज से उसको करते हो. अगेन देयर इज एम्फसिस ऑन यूजिंग एयर फॉर रिससिटेशन इन टर्म बेबीज. व्हाई? धड़ाधड़ ऑक्सीजन क्यों नहीं देते? particularly retinopathy of prematurity, blindness होती है. तो आपने जो जितना टर्म बच्चा है, particularly अगर 32 या 35 वीक्स से ऊपर है, different people have different cut off points, then use air. अगर target SATs नहीं आ रही then you can increase the concentration of oxygen. Preterm बच्चा है less than 28 weeks, तो आप उसमें बेशक blended air oxygen mixture, वो भी recommendation है 30%. तो अगर ये अचीव नहीं हो रही फिर आप उसको इंक्रीज करते जाएं. एंड ऑब्वियसली यू ऑल नो कि प्रीटर्म बच्चों में प्लास्टिक रैप्स यूज करें क्योंकि ट्रांस एपिडर्मल हीट लॉस किन किन तरीकों से हो सकता है.
रेडिएशन, Charge like convection, convection. कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन evaporation. and evaporation. और preterm में evaporation बहुत होती है because उनकी Thin skin. जो skin होती है वो keratinized नहीं होती. तो a lot of heat को इसी तरह ना जब आप वो मतलब कि you take a bath and you stand under the fan जो हम tap water sponging बच्चों में करते हैं, that is an excellent way of losing heat. तो इसलिए हम कहते हैं इनको प्लास्टिक रैप्स में जो भी आपके आम प्लास्टिक मतलब अच्छे क्वालिटी जो आपके फ्रीजर बैग्स मिलते हैं उनमें आप डिलीवर कर सकते हो बिकॉज दैट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन. ओके, सो सर्फैक्टेंट द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देना है. सो हियर यू हैव अ बेबी जो प्रीटर्म था, वो इफेक्टिव ब्रीथिंग नहीं थी, आपने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी. आपका बेबी 28 वीक्स का था तो आपने 30% ऑक्सीजन से शुरू करके उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी. अगर आपके पास नेजल मास्क है तो नेजल मास्क यूज करके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी. उसके लंग एक्सपैंड हो गए, उसने ब्रीथ करना शुरू कर दिया, आपने उसको सीपैप लगा दिया और अब आप उसको अपने वार्ड में ले गए हैं. अब मुझे बताएं सर्फैक्टेंट किसको देना और किसको नहीं देना, इंडिकेशंस क्या हैं? अगर इंट्यूबेशन की है तो हमने उसको सर्फेक्टेंट देना है. हाँ, तो मैंने आपको सुना भी बताया इसमें तो इंट्यूबेशन है ही. Intuition time. तो वो आपकी बात ठीक है. अगर 30 वीक से कम किसी भी वजह से आपको इंट्यूबेशन करनी पड़ गई है और याद रखिए इंट्यूबेशन को अंदर का आजकल अवॉइड करनी, then by all means give surfactant. Otherwise when I was training and up until 2013 the guidelines were कि बच्चों को आप prophylactic surfactant दें rather than rescue. दोनों का डिफरेंस आप समझते हो? Prophylaxis is कि RDS शुरू होने से पहले उनको surfactant दे दो. और पहले ये इतना पॉपुलर था कि when I was training in the UK तो मेरी कंसल्टेंट कहती थी कि उसके लंग्स भी एक्सपैंड ना करो, वो डैमेज शुरू हो जाएगा, सबसे पहले ट्यूब डालें, सर्फैक्टेंट दें, उसके बाद लंग एक्सपैंड करें. तो उस वक्त हम बड़ी मुसीबत होती थी कि प्रीटर्म बच्चा है उसको आपका ये भी होता था कि लंग्स को एक्सपैंड करें, उससे पहले ट्यूब डालो, सर्फैक्टेंट दो, फिर अब वो बैग के थ्रू उसको. दैट इज आउट नाउ. वी डू नॉट रिकमेंड prophylactic surfactant anymore because there are studies to show intubation is a traumatic procedure and children can deteriorate. So now the emphasis is on early rescue. Early rescue का मतलब है कि उसको RDS के features हों, this child has RDS and you think your clinical acumen says may want to need mechanical ventilation because आपका concept है कि mechanical ventilation invasive आपने हर सूरत avoid करनी है तो उसको आप surfactant दें. Not prophylactic but early rescue. So how early is early rescue? अच्छा, अब वही बेबी पे आ जाओ, आप उसको CPAP लगा के ले आए. अब वो आप देख रहे हो कि उसकी CPAP पे प्रेशर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है. द गाइडलाइन से 2 घंटे पे अगर आप CPAP का प्रेशर आपका 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आपकी FiO2 30% से ज़्यादा है तो 2 घंटे में डिसाइड कर लें कि इसको मैंने सर्फैक्टेंट देना है. सो दिस इज अर्ली रेस्क्यू. आपने रेस्क्यू किया, RDS है उस बच्चे को, यू आर श्योर, लेकिन प्रोफिलैक्टिकली नहीं दिया और उसको सारा दिन छोड़ नहीं दिया. 2 घंटे के अंदर अंदर आपने डिसाइड कर लिया. एंड इफ यू वेरी एक्सपीरियंस देन यू कैन टेल कि इस बच्चे का डिस्ट्रेस बढ़ा है, 1 घंटे से पहले भी आप फैसला कर सकते हो. अच्छा, नई चीज इसमें ये है कि पहले अभी भी हम डिसाइड करते हैं एक्सरे करके, बट गाइडेंस डू नॉट रिलाई ऑन एक्सरे. करें आप एक्सरे मत देखिए, आप क्लिनिकल एक्यूमेन यूज करें, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग यूज करें, टेक योर डिसीजन टू गिव सर्फैक्टेंट क्योंकि आपका बॉटम लाइन है कि आपको वेंटिलेशन हर सूरत में अवॉइड करनी है. अच्छा, और चीजें देख रहे थे, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लंग अल्ट्रासाउंड स्कैन जिनमें से आपने हमारी वो अटेंड की थी न्यूरोसिम्पोजियम, उसमें वर्कशॉप रखी थी. लंग अल्ट्रासाउंड स्कैन इज अ बेडसाइड टेस्ट. आई हैव बीन डूइंग इट, दीस गाइस डू इट. और आसिफ मुझे बता रहे होते हैं कि जी ये बी लाइंस नजर आ रही है, तो सर RDS तो बी लाइंस देख के आप सर्फैक्टेंट दे सकते हैं. सिकंदर और आसिफ अब मेरे उस्ताद बन चुके हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन कहते मैडम बी लाइंस है, सर्फैक्टेंट दे दें. अच्छा, फिर आगे जो ये गैस्ट्रिक एस्पिरेट एनालिसिस ये हम तो नहीं करते, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता है. सो बहुत से ममालिक में बेडसाइड टेस्ट है, बच्चे के एब्डोमेन में ट्यूब डालें, गैस्ट्रिक एस्पिरेट लें, उसमें आप कॉम्पोजिशन देख लें, सर्फैक्टेंट का कितना है, रेशियो देख लें, मैच्योरिटी कितनी है. अगर मिलती है तो ओके, दिस बेबी इज इनफ. सर्फैक्टेंट नहीं है तो उसका सर्फैक्टेंट कम है. ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. सर्फैक्टेंट भी जो आपने देना है वो लेस इन्वेसिव देना है, जो ये आपको बताएंगे किस तरह से. यूजिंग दिस वेरी थिन कैथेटर इन अ स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग बेबी. इसमें बच्चे की ब्रीदिंग को आप इंटरप्ट नहीं करते. आई लीव दिस वीडियो
क्योंकि ये इन्होंने आपको बता देना है। तो सर्फैक्टेंट का क्लिनिकल ड्रामेटिक इफेक्ट, सो ये आधे घंटे में बच्चे के लंग, ये उस ज़माने की तस्वीर मैंने ली है जिस ज़माने में एक्सरे देख के हम डिसाइड करते थे। वी स्टिल डू इन मेनी सेंटर्स बिकॉज बेड साइड अल्ट्रासाउंड इज नॉट अवेलेबल। तो लेकिन ये उस टाइम के and I took these pictures just to show that it has a very dramatic effect. और ये याद रखें when you using surfactant, इनिशियल डोज आप ज़्यादा दो। सो प्रोएक्टिव अल्फा व्हिच इज क्यूरोसर्व, अगर आप उसकी इनिशियल डोज 200 mg per kg से दोगे तो there is less a chance that you would need to repeat the dose। और ये याद रखें अगर एक डोज से सेटल नहीं हो रहा मामला तो आपकी दूसरी डोज देनी पड़ सकती है। बट जस्ट गिव अ लार्जर इनिशियल डोज, और अगर आप वो दे रहे हो सवेंटा तो 100 mg per kg, बट सेकंड थर्ड डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, दिस इज जस्ट इंटरेस्टिंग। आरडीएस में तो आप देते ही देते हो सर्फैक्टेंट, बट यू कैन आल्सो गिव इट इन आरडीएस कॉम्प्लिकेटेड विद कंजेनिटल निमोनिया, पल्मोनरी हेमरेज, सीवियर pulmonary एस्पिरेशन, क्योंकि ये दोनों चीजें सर्फैक्टेंट को इनहिबिट करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। सो दीस आर आल्सो नॉन आरडीएस लाइक कंडीशन। अच्छा जी, सो अब आपके बेबी को आपने वो आया था जो चला था हमारा, हमने इसके लंग्स इन्फ्लेट किए, उसको सीपैप पे डाला, फिर हमारे पास आया 2 घंटे में मैंने देखा कि इसका प्रेशर तो ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने टारगेट सैचुरेशन क्या देखनी है 92 94। दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मेरा जो बेबी था, हमारा जो थ्योरेटिकल बेबी था, हमने देखा कि उसका प्रेशर तो 6 पे चला गया है, तो FiO2 जो है 30% से मुझे इसका सैचुरेशन 89 आ रही है। तो मैंने डिसाइड कर नहीं इसको सर्फैक्टेंट देना है, तो मैंने सर्फ कैसे इसको सर्फैक्टेंट दिया। अभी आपको बताएंगे सर्फ कैसे किस तरह देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपने ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देनी है, और बाय द वे ये भी रिकमेंडेड है कि आप एयर ऑक्सीजन मिक्सचर दें जो ह्यूमिडिफाइड और हीटेड, नॉट प्योर ऑक्सीजन। आपकी टारगेट सैचुरेशन 90 to 94। सो दिस बेबी गॉट स्टेबलाइज्ड, उसका डिस्ट्रेस खत्म हो गया। व्हाट एम आई एमिंग एट नाउ टू मेंटेन अ सैचुरेशन बिटवीन 90-94%। एंड यू कैन गिव ऑक्सीजन इन अ नंबर ऑफ वेज, जो आपके आगे बता सकते हैं। जो हम यूजुअली देते हैं दैट्स लो फ्लो ऑक्सीजन। सो इफ इट्स लेस देन 2 liters per minute इट्स लो फ्लो। इफ इट्स anywhere between 2 liters and 8 or 10 liters per minute then it is called high flow। So it's humidified high flow nasal canula oxygen, जो कि बहुत फेवरेट है CPAP की तरह, ठीक है। बिकॉज आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आप उसकी हाइपरऑक्सिक रखोगे तो क्या होगा, आरओपी, और अगर कम रखोगे 90 से कम रखोगे हाइपॉक्सिया, IPAH, ये सारी चीजें, लेटरम पेट्रम, you can have neck, you can have babies dying। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप उसको 90 to 94 के बीच में रखें, अपनी अलार्म लिमिट्स 89 और 95 पे सेट कर लें, बहुत टाइट उसको रखें। ओके, सो दिस इज अ बेबी गेटिंग नेजल CPAP। ये सिकंदर मैंने चिल्ड्रन में बनाई थी, जिस जमाने में मैं वहाँ पर थी, हम लोग जो बॉटल से CPAP बनाते थे। तो कंटिन्यूअस पल्स प्रेशर CPAP, इसके आपने हीटेड ह्यूमिडिफाइड। अब इसमें जरूरी है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की, इंटरफेस आपने क्या यूज करना है, फ्लो ड्राइवर्स वर्सेस बबल CPAP। बबल CPAP गरीब नवाज बहुत अच्छा है। A flow driver is designated machines ventilator इस तरह की जो CPAP देती हैं, but the results of bubble CPAP are just as good। BiPAP की कोई जरूरत नहीं है, CPAP is just as good as BiPAP। प्रेशर आपने CPAP का between 5 and 9 centimeters of water रखना है, और CPAP को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा वेंटिलेशन पे चला गया तो उसको वीक करने के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको आपने एक्सट्यूबेट या CPAP लगा, ठीक है, और आप एज इनिशियल वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम्स आपको इसके साथ पता है, नेजल ट्रॉमा होता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, प्रेशर्स बहुत हाई रखे, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। एंड रिमेंबर अगर आप वो यूज कर रहे हो, यू शुड बी रेडी टू स्टेप इट आउट। तो इंटरफेस जानना जरूरी है। दिस इज द नेजल मास्क, ये रैम कैनुला है, ये नेजल मास्क लगा हुआ है, इसके थ्रू उसको CPAP मिल रही है, और ये शॉर्ट बाय नेजल वेल्व्स है, हडसन वेल्व्स है, इसे बबल CPAP आप दे सकते हो, ठीक है। इसे भी आप CPAP दे सकते हो। रैम कैनुला का ये कि इसके थिन इंटरफेस होता है। अगर आपका नेरीज जो है या नेयर्स जो है 50% से कम ऑक्लूडेड है, then you're not giving CPAP, you're actually giving humidified high flow। थोड़ा बहुत वो प्रेशर जनरेट करता है which is unmeasurable, लेकिन CPAP का समझिए कि आपके वेल फिटेड नेजल कैनुला होने चाहिए ताकि एयर एस्केप ना करे। ये वही चीज़ नहीं है। ये वीडियो स्किप कर देते हैं, चलो चला देती हैं। ये लेटी ना उसको दे रही है नेजल
वेंटिलेशन और वो प्रेशर डायल को देखती जा रही है, बेबी आपका आया, अच्छा वो कह रही है कि चलो ये मशीन है पर्टिकुलर जिसमें दोनों मेथड्स हैं, तो वो कह रहा है कि आप उस तरह भी दे दें। तो ये जो हमारा थियोरेटिकल बच्चा चला था ना, जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ ये सारा कुछ हुआ। अगर उसकी इरेगुलर ब्रीदिंग थी, इनसफिशिएंट ब्रीदिंग थी, तो इनिशियली हमने क्या किया, हमने उसके लंग्स को इन्फ्लेट किया प्रेशर्स को देखते हुए। वो देखो वो 20-25 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर उसने नेजल उसको वेंटिलेशन की थी तो बड़ा आसान है, नेजल वेंटिलेशन करने के बाद उसी के साथ आप CPAP लगा दें। अगर आपने मास्क से वेंटिलेशन की है तो फिर आपको नेजल CPAP के लिए नेजल मास्क फिट करना पड़ेगा, CPAP उसके साथ लगानी पड़ेगी, और उस तरह से आप अपने बेबी को लेकर डिलीवरी रूम से अपनी नर्सरी तक जाएंगे और नर्सरी में जस्ट कंटिन्यू विद द CPAP। ठीक है, वो उसने बताया कि अगर आपने इसके इफ यू वेंटिलेटिंग, आई मीन न्यूरोलॉजी इज प्रीटी काइंड ऑफ हाई टेक एज़ वेल, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इक्विपमेंट क्या है। और ये वैसे नेजल मास्क अवेलेबल है ना, सिर्फ मास्क तो अवेलेबल है, चलो ठीक है। अगर उसने कहा कि अगर आपने मास्क से इसको वेंटिलेट किया है तो फिर आपने जो फेस मास्क किया तो नेजल मास्क का साइज डिटरमाइन करें। ये आपने नेजल मास्क फिट किए, ये उसकी बॉनेट के साथ फिट किए, और अल्लाह खैर सला अब उसका CPAP जा रहा है, तो उसका एक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है जो उसकी एल्वियोलाई को टोटली कोलैप्स होने से बचा रहा है, वो बलून्स पार्टली इन्फ्लेटेड है, वो उसने डायल पे अपना CPAP सेट किया और इस तरह ये लेके इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ओके, हीटेड ह्यूमिडिफाइड, अगेन वो चीज़ें जो नॉन इन्वेसिव है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो गरीब नवाज है, हम सारे कर सकते हैं, एंड वो मैंने आपको बता दिया है। हीटेड ह्यूमिडिफाइड का फ़ायदा क्या है? एक तो उसके साथ ट्रॉमा कम है क्योंकि लूजली फिटेड है, आप बेबी को उठा के साथ ही फीड कर सकते हो, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, यू कैन क्लीन अप द फेस, प्रेशर इफेक्ट उसका कम है, और इसका प्रिंसिपल ये है कि वो जो डेड स्पेस होती है ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को उसमें डाल देते हैं, सो the baby can maintain saturation. It's a good primary modality and it's a good weaning modality as well. So अभी ये सबसेस में हम लोग के पास है हमारे साहब के बारे में भी थे, ये apparatus है जिसमें से आप दोनों कर सकते हो, आप CPAP भी दे सकते हो, इसी में से इसमें आप हाई फ्लो भी दे सकते हो, थोड़ी सी आपको सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत होती है। एंड देन ऑब्वियसली जिस तरह आप ट्यूब के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हो, नाउ यू हैव वेंटिलेटर्स जिसमें आपने नेजल इंटरफेस लगा के इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं, व्हिच कैन बी सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड इज बेटर। तो जैसा ट्यूब के थ्रू वेंटिलेटर हवा इन एंड आउट कर रहा होता है ना, वो नेजल कैनुला के थ्रू हवा इन एंड आउट, दीस आर स्पेशल मोड्स नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के, एंड ऑब्वियसली सिंक्रोनाइज्ड इज बेटर। अब मुझे बताओ वैसे डिफरेंस क्या आपके ख्याल में इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव का? क्योंकि वो सारा कुछ हम नॉन इन्वेसिवली भी कर रहे हैं ना, हाई फ्लो भी दे रहे हैं, ये ऑसिलेटरी वेंटिलेशन भी कर रहे हैं। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव? ट्यूब का क्या है? आप ट्यूब से नॉन इन्वेसिव भी कर सकते हैं, मैं वैसे कह रही थी। अगर वोकल कॉर्ड्स बाईपास कर दिए ना आपने किसी के, तो दैट बिकम्स इन्वेसिव, बिकॉज आपने कॉफ रिफ्लेक्स की खत्म कर दी, दैट्स इन्वेसिव। वोकल कॉर्ड से ऊपर आप जो मर्जी कर लो, दैट्स नॉन इन्वेसिव। ठीक है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। आपने कॉफ रिफ्लेक्स सप्रेस नहीं की। ओके, देन मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। मैकेनिकल वेंटिलेशन में मैं आपको थोड़ा सा नाउ द एम्फेसिस जो मैंने आपको बताया, डैमेज नहीं आपने करना बच्चे के लंग्स को, तो आपने सिंक्रोनाइज वेंटिलेशन क्या होती है? जी बेबी ब्रीदिंग कर Breathing के साथ। सो वेंटिलेटर स्मार्ट है, वो सेंस करता है बच्चे ने ब्रीदिंग की, उसके साथ बैठ जाता है। अदरवाइज अगर नहीं देगा, नॉन सिंक्रोनाइज होगी तो क्या उसका नुकसान किया? तो वो इनसेंटली नहीं है, बेबी जो है वो ब्रीथ आउट कर रहा है, वेंटिलेटर उसको ब्रेथ इन दे रहा है। सो जो ना आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, कोई मास्क रखे हो, उस वक्त आपको एयर पंप इन कर, दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स। And then what is volume targeted ventilation? So synchronized ventilation is better, volume targeted ventilation है। इसमें हम टाइडल Tidal वॉल्यूम सेट set करते हैं। So हम लोग pressure ventilation करते हैं न्यूबॉर्न्स में, but now the ventilators are very smart. तो आप, और ये स्पेशल मोड है, so you can't do it everywhere. You set volume targeted ventilation, जिसमें आप tidal volume feed in कर देते हो। So tidal volume initially predetermined 5 to 7 ml per kg, वो आप उसकी लिमिट सेट कर देते हो। रियल टाइम में वेंटिलेटर डिटेक्ट करता है कितना ही वॉल्यूम अंदर जा रही है और बाहर आ रही है।
बेबी की जिस तरह लंग कंप्लायंस इंप्रूव करती है, आपको पता है RDS 48 आवर्स में इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। जो जो उसकी लंग कंप्लायंस इंप्रूव करती है, वेंटिलेटर ब्रेथ टू ब्रेथ वो अंदाजा लगा लेता है। अगर वो देखता है कि बच्चे की कंप्लायंस बेहतर है, उसी प्रेशर पे टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वो प्रेशर ड्रॉप कर देगा टू मेंटेन द टाइडल वॉल्यूम। सो द वेंटिलेटर इज वेरी स्मार्ट, ब्रेथ टू ब्रेथ वो लंग कंप्लायंस कैसे असेस कर रहा है, वॉल्यूम की बेसिस पे जो ब्रीथ इन एंड आउट हो रही है और अपने प्रेशर को सेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज वॉल्यूम टारगेटेड वेंटिलेशन। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन इज बेटर, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर्स नहीं है, but high frequency ventilation is expanding the lungs and then giving gentle ventilation through vibrations. तो जब gentle ventilation होती है तो lung damage नहीं होता, ठीक है? So that is why high frequency oscillating ventilation has minimal lung damage effect. तो recap करते हुए नॉन इन्वेसिव भी बच्चों को वेंटिलेट करें, CPAP दें, हाई फ्लो दें। कुछ बच्चों में 50% में आपको इन्वेसिव भी वेंटिलेट करना ही पड़ेगा। अगर करना पड़ रहा है सिंक्रोनाइज रखें, वॉल्यूम टारगेटेड रखें। अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेटर है, कीप इन माइंड दैट इज लेस डैमेजिंग देन कन्वेंशनल वेंटिलेशन एंड एक्सट्यूबेट द बेबी एज अर्ली एज पॉसिबल। ये नहीं कि वेंटिलेटर पे पड़ी जा रहा है, चली जा रहा है, बेहतर हो रही है सैड्स, आप 20% पे उसको वेंटिलेट करते जा रहे हैं। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेबी ने खड़े होकर नहीं कहना एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सट्यूबेट मी, ठीक है? इट इज योर डिसीजन, यू हैव टू एक्सट्यूबेट एज अर्ली एज पॉसिबल। और एक्सट्यूबेशन डायरेक्टली यूजुअली आप नहीं करते, इनटू सम लेसर फॉर्म ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट व्हिच वी यूजुअली यूज CPAP और उसके बाद हाई फ्लो और उसके बाद एक्सट्यूबेशन, ठीक है? दैट्स व्हाट इज रेकमेंडेड। आप उसको सिंक्रोनाइज नेजल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर में भी एक्सट्यूबेट कर सकते हो, बट सिंस दिस मोडालिटी इज नॉट अवेलेबल विद एवरीवन, my guidelines for you would be कि वेंटिलेट करें बच्चे को as early as possible, the baby loves extubate करें उसे, extubate into either nasal CPAP। nasal CPAP के बाद जब उसके आपके प्रेशर्स लो होने लगे, 5 सेंटीमीटर से वाटर से कम जा रहे हैं, FiO2 आपकी 25% 20% में आ गई है, go on to humidified high flow। humidified high flow में आप फ्लो कम करते हैं, जो कि आप 2 लीटर्स पर मिनट से नीचे जाएंगे, आपका supplemental oxygen low flow शुरू हो जाएगी, and from there then you can either go to an ambient oxygen, oxygen enriched जो incubator में आप treat करते हो, just extubate into it। कैफीन का रोल बहुत, ये प्लीज दें, this improves lung mechanics and इनॉफिन से बेहतर है, इसका सेफ्टी मार्जिन बेहतर है, ये डोजेस आपके सामने लिखी हुई हैं। The plenty of studies to show कि less than 32 weeks में आप दे दें कैफीन। And when you have totally ventilated a baby, जब आप extubation की तरफ जा रहे हैं, तो definitely start caffeine। Permissive hypercarbia क्या है? अगर आपका pH 7.22 से ऊपर है, do not raise carbon dioxide। मैंने आपको कहा था emphasis is on gentler ventilation, except CO2 between 37 and 52 millimeters of mercury, provided your pH is above 7.22। Because blowing off too much carbon dioxide leads to constriction of cerebral vessels, cerebral ischemia, and can cause periventricular leukomalacia because cells in the brain start dying off. उसकी perfusion कम होती है and then they will necrose. But severe hypercapnia, of course, उसके अपने problems हैं. So again, do not chase CO2 if your pH is okay and your CO2 is at less than 52 millimeters of mercury। Post-natal steroids, अच्छा जी, ये पहले था जब हम देते थे, फिर हम नहीं देते थे, दोबारा से हम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका एम ये है कि जितनी जल्दी बच्चा एक्सट्यूबेट हो सके कर लो। अगर आपके बच्चे को 1 to 2 weeks और से ज़्यादा होने लगे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, तो लो डोज डेक्सामेथासोन 0.9 mg/kg per day for a few days will help in extubation क्योंकि edema कम करेगा। But remember, steroids may be associated with spontaneous intestinal perforation and particularly if you have poor neurodevelopmental outcome। So if you're working in good centers, वो आप parents को एक information leaflet देते हैं, उससे signatures देते हैं कि हम इस बच्चे को 1 हफ्ते के लिए steroids देने वाले डेक्सामेथासोन दे रहे हैं। Pain and sedation, again इसमें भी बहुत changes। When I was training, हम लोग सारे बच्चों को morphine देते थे because concept is उनको बिल्कुल pain, but now the role is very limited। So आप पेन स्कोर्स पे जाएं, पेन स्कोर्स पे अगर आपको लगता है बच्चा पेन में है तो आप उसको नॉन सेडेटिव पेन रिलीफ दें,
try to avoid sedation of babies as far as possible because again मैंने आपको कहा आपका पैराडाइम ये है कि जितनी जल्दी एक्सट्यूबेट कर सकें कर लें. जब भी आप उसको sedation देते हो आप उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में लेके जाते हो. ठीक है. So अब इसकी भी कुछ इतनी वो जरूरत करनी नहीं है. This I'll go over quickly. Antibiotics की guidelines अलग से हैं. ये इसमें भी वैसे उन्होंने दिए हैं कि unwarranted नहीं यूज करें. Fluid and electrolytes में जो important चीज़ है सोडियम ऐड करें once the baby has lost 5% of body weight, which is around day 3. And they're saying कि इन्होंने जो data study किया था, we are giving 2 months saline boluses. तो बिला वजह के अगर perfusion कम है, by all means, refill time आपका 3 seconds से ऊपर है, by all means, you can bathe the rate because I know residents have a tendency to give a lot of saline boluses, unnecessary नहीं देनी है. Then इस पे I'll skip over very quickly क्योंकि ये आपकी जो RDs को जब आप बच्चा manage कर रहे हो तो you have to look at blood pressure, perfusion, you have to give supportive care in terms of monitoring, temperature control, keeping the baby comfortable. Or I think this is my last slide. ये sort of table है, I can read this with you, and these just form guidelines on what to do in what situation. So low risk babies को high flow CPAP initiate करें, moderate risk को वही CPAP initiate करें, continue CPAP, caffeine दें, early rescue surfactant दें, high risk को initial step वही है, initiate CPAP और nasal intermittent positive pressure ventilation, caffeine दें, antibiotics अगर infection present है, and early rescue surfactant दें. Now remember most cases of preterm labor, एक तो वो बच्चे ने जो gynecologist ने preterm deliver किया है, that baby is okay. लेकिन spontaneous onset of preterm labor अगर हो तो very important cause of spontaneous onset of preterm labor is poliomyelitis. So those babies should be covered with antibiotics until you have negative culture results. And so recapping milestones in management जो मैंने आपके साथ discuss किया है, antenatal steroids, appropriate resuscitation, supportive management, deferred cord clamping, use of early rescue surfactant, use of delivery room nasal CPAP. Don't let the baby struggle. Delivery room में इसको CPAP पे डाल दो. And gentler modes of ventilation. Accept lower pressures, accept lower rates, as long as your gases are holding and your baby is clinically well. And extubate this baby as early as possible. ये सारे references थे, मेरे से ले लेना. And thank you. Any questions? नहीं यार, questions पूछो. मैम आप इतना अर्ली एक्सट्यूबेशन पे एम्फोसिस कर रही हैं, लेकिन जो गाइडलाइन कुछ गाइडलाइन जिस तरह एनेस्थीसिया के कुछ जो रेजिडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपकी जब तक पैथोलॉजी रिजॉल्व नहीं होती तब तक आप पेशेंट को एक्सट्यूबेट ना करें. You're right, but RDS की pathology कब resolve होती है? Your RDS will resolve within 48 to 72 hours. And obviously you have to go by the baby, लेकिन ये याद रखें कि आपकी ventilation is coming at a cost. I have seen, I don't strictly agree with you. एक baby suppose या एक even adult pneumonia के साथ आया है और अपनी gases maintain कर रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, air में ventilate. Why do you want to ventilate this guy? Total resolution में तो time लगना है ना. The resolution has to be enough for a person to spontaneously support his breathing. As soon as you reach that point, extubate. क्योंकि आपको क्या नुकसान के prolonged ये तो हमने कहा barotrauma, polytrauma, उसके अलावा आपके ventilation associated pneumonias. You bypass the vocal cords, you suppress the cough reflex, you risk the chance of aspiration, you risk the chance of patient lying in bed, developing pressure sores, developing deep vein thrombosis in adult patients की बात कर रहे हैं. It comes at a cost. Ventilation is at a cost. Not to mention that you increase the cost of medical care. ठीक है जी? जी. आपने कहा था कि जब अर्ली साइंस आते हैं तो हम सर्फेक्टेंट दे देते हैं, लेकिन जब फुल ब्लोन डेवलप हो गया आरडीएस तो फुल ब्लोन को कैसे कहोगे RDS? यानी कि उसमें फिर रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज या रेडियोलॉजिकल साइंस है उसमें. तो that's what I'm saying ना, आपने उस नौबत पे जाने नहीं देना. ठीक है. गाइडलाइंस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक. आप प्रीटर्म बेबी को नेजल सीपैप लगा के ले आए हो, अब छोड़ नहीं उसको देना, ठीक. उसको देखते रहना. तो 2 hours पे लोगों ने, this is the 2 hour assessment and people, और आपकी assessment क्या होती है कि क्या ये बच्चा मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ तो नहीं जा रहा. अगर आपको लगता है वो जा रहा है तो उसे surfactant दे दें.
और इसका ऑब्जेक्टिव भी किस तरह लोगों ने ऑब्जेक्टिफाई किस तरह किया है. The studies to show that 2 are FiO2 and CPAP pressures are good indicators of babies who may go on to need mechanical ventilation. वो बच्चे जिनका 2 घंटे पे 30% से ज़्यादा ऑक्सीजन और प्रेशर उनका 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा था. Studies showed that they were very likely to need mechanical ventilation later on. तो वहीं पे उनको Surfactant दे दें because many of them will then not need mechanical ventilation. Having said that, जो मैंने आपको स्लाइड बताई थी 28 वीक्स पे अगर आप बच्चे देखें आपकी तमाम तर एफर्ट के बावजूद 50% तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पेश आएगी और 50% फर्स्ट एक्सट्यूबेशन को फेल भी करेंगे. जहाँ जरूरत है वहाँ करें. लेकिन ये गाइडलाइंस जो मेरे ज़हन में इसका लुबे लबाब आया है, यू नो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, कि आप गैर जरूरी मत करें वेंटिलेशन को अवॉइड करें इफ पॉसिबल एट द मिनिमल ट्रॉमा एंड कॉज मिनिमल ट्रॉमा टू द बेबी. बहुत एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो अंदाजा जिस तरह अगर आसिफ होगा या सिकंदर होगा, दे नो इवन एट 1 आवर कि कितना बेबी स्ट्रगल कर रही है. यू कैन टेल कि इस बेबी का डाउन जाना है उसको आप 1 घंटे में भी सब बैठे. बट माय पॉइंट इज जिस तरह हम लोगों ने जहालत के खैर यू नो मेडिकल नॉलेज एडवांसेस दैट वाज द बेस्ट एविडेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम. हम जब बेबी रिसीव करते थे उसके लंग एक्सपेंशन पहले हम इंट्यूबेटर्स को करते थे, व्हिच बाय द वे इज द रॉन्ग वे ऑफ गिविंग Surfactant नाउ. आई मीन नॉट द रॉन्ग वे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नॉन इन्वेसिवली दें, मिनिमली इन्वेसिव दें. तो हम एंड्रो क्या करते थे, एंड्रोट्रीपल ट्यूब डालते थे. Surfactant हमारा रेडी होता था, Surfactant उसको देते थे, बैक करते थे ताकि Surfactant सारा स्प्रेड कर जाए, फिर एक्सट्यूबेट करते थे. ये अब आपको बताएंगे वो क्या चीज़ है छोड़. लेकिन नाउ दैट्स नॉट रेकमेंडेड. जैसे प्रोफिलैक्टिकली ना दें, देख लो उससे कि ना बच्चे को जरूरत पेश है. और पाकिस्तान में आई थिंक फॉर द रीजन कि स्ट्रेस प्रेगनेंसीज होती है, मेनी आई सीन मेनी प्रीटर्म बेबीज हु एक्चुअली हैव डन रियली वेल इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेशन. 28 वीक्स में कितने बच्चे हमने देखे हैं जिनको जो अभी आपने जो ये 26 वीकर था ना जिसको वेंटिलेट नहीं करना पड़ा था, CPAP पे वो ठीक हो गया था वेंट को. Margaret and Sheikh Medical City Hospital. I formally welcome Professor Dr. Taiba Khawabat, Head of Pediatrics in Services Institute of Medical Sciences. She is specialized in handling the most complex situations for the newborn, coordinating their care and impacting other people's life. Her dedication to health and well-being of our youngest patient is truly remarkable. Please join me in welcoming Professor Dr. Taiba Khawabat. Professor Humayun, dear colleagues and students, Assalamu alaikum. It is indeed a pleasure to be here. Professor Humayun is just like an elder brother to me, and we have many happy memories of working at Services Institute of Medical Sciences. And it is a great pleasure for my team and myself. My team includes Professor Asif and Sikandar Dayana. मुझे आपकी तरह नॉमिनल एफेजी है थोड़ा सा. So the session today is very useful because we're going to deal with the neonatal respiratory problem. And Professor Humayun ने आपको already दे दिया an overview of respiratory physiology, which is a very important topic. And सिकंदर आपको याद है जब हम topics decide कर रहे थे न्यू सिम्पोजियम की, तो मैंने कहा था कि somebody should actually address this topic. So I'm really glad that this has been addressed. और as usual technology is failing us, but never mind. अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि what do you know about because the topic we're going to talk about is all interconnected. आपको Surfactant administration के तरीके बताएंगे. And obviously this is Surfactant needs to be administered. सबसे common उसकी indication क्या होती है? Respiratory. RDS. RDS की etiology क्या है? Prematurity low muscle. Yes, but होता क्या है? Surfactant नहीं पता. Surfactant. So many times RDS is also known as SDLD or surfactant deficiency lung disease, and also known as hyaline membrane disease. So hyaline membrane disease क्यों कहते हैं ऐसे? Because of the extracellular matrix से जो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं जाके डेब्री, वो उसको हाईलाइट जी चेंज शाबाश. करते तो हैं. अगर इन लंग्स की आप वो लेके माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बनाएं और टॉक्सिक डिओसिन से स्टेन करें, तो it is very pinkish, and you can see hyaline membranes within the alveoli, so therefore it is known as hyaline membrane disease. तो अब मुझे कौन बताएगा कि why does it happen? होती क्यों है? So it's an interactive session. आप बेशक मुझे रोक लेना जब भी आप रोकना चाहो. होती क्यों है? क्योंकि surfactant deficiency So surfactant deficiency. So the key word here is surfactant, and that makes the question: what is surfactant?
लाइपोप्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन है कि फॉस्फोलिपिड है? Phospholipid. लाइपोप्रोटीन है जिसमें Lipoprotein फॉस्फोलिपिड और हाँ, प्रोटीन phospholipid, है। हाँ, it has phospholipid parts and it has protein parts. तो does anybody know? So आपको जो and it's not uniform. Different types of phospholipids, phosphatidylcholine, phosphatidylinositol, and as a baby develops in utero, the amount of surfactant in the lung increases. It also has proteins. So नाम कौन बताएगा मुझे proteins का? नहीं वो They तो are known as फॉस्फोलिपिड्स है। apoproteins. Apoproteins। Apoproteins. और कितनी टाइप की apoproteins हैं? Four types. So you have apoproteins that are labeled A, B, C, and D. What does this surfactant do? Why is it so essential? क्योंकि लंग्स की लाइनिंग बनाता है और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो लंग कंप्लायंस इंक्रीज। शाबाश. So it reduces the surface tension. और अभी आपसे दो सवाल मजीद पूछूंगी because आपका तो बड़ा knowledgeable group है. Surfactant जो है वो आता कहाँ से? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। Type 2 cells which are known as Clara cells. उनकी shape कैसी होती है? They are cuboidal cells, and these are little cuboidal cells that are found within the alveoli. Alveoli chiefly is composed of flattened epithelial cells. जो alveolar cells होते हैं वो flat इसलिए होते हैं because they form part of the respiratory membrane and a lot of gas exchange has to take place. तो obviously अगर gas exchange होनी है या even fluid exchange होने हैं, electrolyte exchange होनी है, as happens in the kidneys जहाँ पे आपका filtration membrane होता है, these membranes have to be very thin and the membranes have to be adjacent to blood capillaries. ठीक है? तो अगर आप alveoli fully mature alveoli का cross section देखें, ये भी होती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ. तो you have these balloon-like structures with flattened epithelium and interspersed within them are cuboidal cells. चलिए, thank you. No conflict of interest. Just पैसे नहीं मिल रहे इस lecture में. Key points that we're going to study are stages of lung development, surface tension and surfactant जो मैंने आपके साथ discuss कर लिया. Then I will talk a little bit about updates on how to manage respiratory distress, which is the latest European consensus guidelines. तो ये मैंने आपके साथ कर लिया है. Obviously, you know, the more preterm a baby, the more the incidence of RDS. Although very rarely it can also happen in term babies. Although considered a disease primarily of preterm babies, और ये मैंने जो एक line लिखी है आप सबको perspective में करने के लिए that the mortality in low and middle income countries as in ours is 10 times as higher as in the more advanced countries. The reason obviously being that neonatal care is intensive care. It's very highly technical dependent. आपकी ventilators पे depend करती है, आपकी monitoring पे depend करती है. तो जहाँ पे ये चीजें बेहतर होंगी वहाँ पे survival बेहतर होगा. However, I think हमने कुछ सालों में we've come forward by leaps and bounds. आपकी बहुत सी training sessions शुरू हो गई हैं. The use of ventilators and respiratory care has seen improvement. तो पाकिस्तान में भी hopefully और जब तक आप जाओगे situation और बेहतर हो जाएगी. जब मैं आपसे पूछ रही थी respiratory membrane का और alveolar cells का, तो it's good if we look at the stages of development. तो बेटे जो lungs है ना वो develop होते हैं obviously as a fetus grows. और ये आप देखो initially the development that takes place is of tubular structures. So trachea develops, the bronchi develop, the bronchioles develop. ये जो आपके conducting passages हैं, they are non-respiratory passages. ठीक है? So अगर कोई baby यहाँ पे deliver हो जाएगा, तो वो या यहाँ पे deliver हो जाएगा, तो क्या करेगा? उसके पास कोई respiratory passages, just as conducting passages. जब हम ventilate नहीं कर रहे होते, तो हम इसको क्या कहते हैं? We say this is what space? This is dead space because no gas exchange takes place here. So essentially, इस state में तो these lungs are incapable of producing any ventilation. जो बच्चा आगे fetus develop होता है, passes from embryonic to pseudoglandular to canalicular. Canalicular stage में सबसे पहले जाके आप देखते हो ये rudimentary से alveoli बनना शुरू हो जाते हैं. In the saccular phase, which is around 32 weeks के करीब, so you can start seeing these alveoli, but these are primitive alveoli. And later on they form these clusters, और उसके अंदर septation होती है, so you have groups of alveoli that are communicating with each other.
It's very interesting to note that lung development continues postnatally. So brain development continue करती है ना, तो lung development capacities की alveolar formation continues until 2 years of age. Okay, ये मैं जो आपसे बात कर रही थी. So ये thin cells जिनको हम type 1 cells कहते हैं, these are very thin cells. ये cells के इस तरफ are your capillaries that enable gases exchange. इस तरफ आपकी air है जो आप breathe in and breathe out कर रहे हो. And here it is placed between these flat cells like these tubercle type 2 cells और Clara cells जो surfactant बनाते हैं. And as you very rightly said, surfactant is a phospholipid, तो ये Golgi apparatus में बनती है, then it's extruded within the cell surface. और एक दफा जब इसका molecule निकल आए तो it's broken down and it's recycled. Recycled होके इसके components get reabsorbed, get resynthesized. Initially जब ये बनता है तो बड़ा crumpled structure होता है, ठीक है? इस तरह करके एक मोड़ा थोड़ा सा धागा सा है. And it is the job of the 4 apoproteins that I mentioned in the composition. इस surfactant का जैसा हमने कहा कुछ इसका protein part है, but ज़्यादा इसका phospholipid part है, and जो मैंने आपको कहा था very tight skin है. तो ये जो protein part है ना, जो particularly surfactant protein B and C, वो जो छोटा सा धागा पड़ा होता है उसकी ends पे रख के उसको यूं spread out करते हैं, ठीक है? So it spreads it out on the inner surface of the alveoli. So what you have is what we call typically a lipid bilayer, ठीक है? ये उसको फैला के उसने अंदर बिछा दिया. And now that we said the role of surfactant is to decrease the surface tension, and this is exactly what it does. So वो situation जहाँ पे surfactant नहीं बन रहा because the lung is premature, because इसके type 2 Clara cells develop नहीं हुए, because alveoli develop नहीं हुए, उनमें RDS की picture आएगी. लेकिन imagine करो अगर ये surfactant यहाँ तक सारा कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन apoprotein B और C नहीं है जो उसको spread out कर रहे हैं, तो भी RDS की picture develop होगी. And these are those rare cases of RDS which are seen in term babies, and these are familial. And I have seen a family जिसमें term बच्चा पैदा होता है, ground glass appearance, surfactant देते हो ठीक होता है, फिर ground glass appearance, फिर surfactant देते हो, फिर, and obviously these babies won't survive because you can't continue giving surfactant their entire lives, ठीक है? So these are those rare cases. Term में वैसे भी surfactant deficiency हो सकती है, hypoxic हो गया या pneumonia हो गया, but these are those rare cases of surfactant protein B and C deficiency that can give rise to RDS like picture. So that begs the question हम जिक्र करें surface tension. What is surface tension? सामने लिखा. Surface tension is why a few drops of water become globular. Because the molecules of the fluid have this inherent property to collapse on each other and acquire the smallest possible volume. और वो उसी सूरत में possible है कि वो globe की शक्ल में आ जाए. So how many of you have seen mercury thermometers that get broken? सारे देखे ना, तो mercury क्या होती है? छोटे उसकी globules बन जाते हैं that kind of travel from here. It never kind of spreads out. So surface tension कितनी है will vary with different liquids. Mercury की बहुत ज़्यादा है. Mercury को कभी मैंने sort of सवाए छोटे particles के because very quickly वो droplets बना लेती हैं. That's true for water as well. ये और जब ये इस inherent property की वजह से एक छोटा सा globule बनाती है, तो इसकी जो पानी की surface होती है ना, इसके ऊपर almost elastic properties आ जाती हैं. और आप में से कितने ने देखा हुआ है कि चूंटी या कीड़ा इस पानी के ड्रॉप के ऊपर फंसा हुआ, वो effort कर रहा होता है उससे निकलने में. So it's really quite a lot of force that's causing this globule to collapse. This is exactly what happens in this alveoli. अगर ये लिपिड बाइलेयर यहाँ पे ना हो, तो लिक्विड लेयर तो है ना, फ्लूइड की एक लेयर तो है. This fluid layer is going to cause the alveoli to collapse completely because that is the property of water saline जो हम सारों की surfaces को line करता है. It collapses completely. तो जब ये completely collapse करता है, तो क्या होता है? तो जिस तरह इसको निकलने में मुश्किल हो रही है ना, तो उसको alveoli को re-expand करने में मुश्किल होती है. तो alveoli को re-expand किसने करना है? वो बेबी जिसके अंदर वो lungs हैं. आप में से कितनों ने बलून को ब्लो किया है? बलून सारों ने ब्लो किए ना? Have you noticed when is it easiest to blow a balloon? In the beginning
बिगिनिंग में वेरी डिफिकल्ट, जो बलून का साइज बढ़ता जाता है क्या होता है, इजी हो उसको इजी होता जाता है उसको ब्लो करना। तो आपका फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या करती है? Do your alveoli collapse completely at the end of an expiratory effort? No. आप समझ आइए क्यों completely collapse नहीं करते? Because they are lined with surfactant, which is countering the surface tension, which prevents this fluid-lined cavity from forming a tight drop, so that you don't have to exert so much pressure. इसलिए we are unaware of our breathing. Because हमारे सारे जो alveoli that are tiny balloons are held in a state of semi-inflation ताकि हमें वो जोर ना लगाना पड़े। तो अब आपको समझ आ रही है कि प्रीटर्म्स के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है सांस लेना। नंबर 1, poor lung development, कहीं वो सेक्युलर स्टेट के नारिकुलर स्टेट में फंसा हुआ है, एल्वियोलाई रीड के डेवलप नहीं हुए होते कोई खास, एल्वियोलाई डेवलप ही हुए हैं तो क्लारा सेल्स नहीं है जो अराउंड 32 वीक्स बनने शुरू होते हैं, सर्फैक्टेंट नहीं है। अच्छा चलो अगर टूटा पचा सर्फैक्टेंट आ भी गया तो लंग वॉल इतनी कंप्लायंट है कि जब भी वो इनहेल करता है, by the way at this point you know what the basic difference between positive pressure ventilation and natural ventilation is? हम जो naturally breathe करते हैं is it positive pressure or negative pressure? Negative pressure. Which is negative pressure. ठीक है, that's ये याद रखो ये basic difference है between artificial ventilation when air is pushed into the lungs, so it's a positive pressure ventilation, and natural ventilation you generate a negative pressure. Negative pressure generate करने के लिए क्या जरूरी है? डायफ्राम नीचे हो, रिब्स बाहर की तरफ हो, ताकि आपकी प्लूरल स्पेस में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग प्रेशर, प्लूरल प्रेशर से ज्यादा हो जाए, एंड देन एयर रशेस इन एसिड। दैट्स द मैकेनिज्म, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो चेस्ट वॉल है और आपकी जो रिब्स हैं, दे आर स्टिफ स्ट्रक्चर्स। अगर वो स्टिफ नहीं होंगे और लिफलिफे होंगे, जिस तरह के जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि वेरी कंप्लायंट और सॉफ्ट चेस्ट वॉल जो प्रीटर्म बेबीज की होती है, यू नो दे हैव कार्टिलेजेस फॉर रिब्स, मसल्स इनके बहुत थिन हैं। तो होता क्या है? होता ये कि जब भी वो ये एफर्ट पुट इन करते हैं, दे कांट जनरेट दैट नेगेटिव प्रेशर, उनकी चेस्ट वॉल ही अंदर सकिंग हो जाती है, सो दैट नेगेटिव प्रेशर जस्ट कैन नॉट बी जनरेटेड बिकॉज द चेस्ट वॉल इज वेरी सॉफ्ट एंड इट कांट बी स्ट्रेटेड। उसके बाद आप दबा उनको रिसस्टेट करना शुरू करते हो, पहले वो हाइपॉक्सिक होती हैं, फिर आप उनको हाइपर ऑक्सिक करते हो, फिर वो हाइपर काफिक होते हैं, एसिडोटिक होते हैं, फिर आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करते हो जिससे लंग्स आर्टिफिशियली एक्सपैंड होते हैं, उस वॉल्यूम की वजह से लंग की लाइनिंग में ट्रॉमा शुरू हो जाता है, विच इज वॉल्यूम ट्रॉमा। जब आप वॉल्यूम इंसर्ट करते हो, बैरो ट्रॉमा जब प्रेशर चेंजेस आप उस डेलिकेट मेम्ब्रेन की करते हो, तो ये सारी फिर सेकेंडरी इंसाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो you can imagine how difficult it becomes for a preterm baby to breathe. It's a very sad situation to be in. सांस ही नहीं आ रहा, ठीक है? Because there are all these factors that are working against you. Okay, so this is a diagram that I really like because this shows a preterm lung and this shows a term lung. तो आप देख रहे हो इसमें क्या फर्क आ रहा है? आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज हो रही है। प्रेशर को जितना नेगेटिव, जितनी जोर से सांस लोगे, जितना इंट्राथोरेसिक प्रेशर को नेगेटिव करोगे, उतनी ही लंग वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है? अगर तो बहुत कंप्लायंट लंग्स है तो शुरू में तो जो शुरू का बलून है जिसको फैलाना मुश्किल हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ये आपने 10 का प्रेशर, -10 का प्रेशर एक्सर्ट कर लिया तो थोड़ा सा लंग एक्सपैंड हुआ, लेकिन जब ये बलून थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है तो वेरी लिटिल चेंज इन प्रेशर विल इन्फ्लेट द बलून। लेकिन ये गरीब प्रीटर्म का जो लंग है ना, जो स्टिफ है, मैसिव प्रेशर चेंज आप कर रहे हो लेकिन लंग इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। सो जब आप वेंटिलेशन देख रहे होते हो और लंग लूप्स देख रहे होते हो, सो दीस आर काइंड ऑफ लंग लूप्स, एंड ये लोअर लिम्ब रिप्रेजेंट्स द इंस्पिरेशन एंड देन एक्सहेलेशन ऑब्वियसली इज द पैसिव प्रोसेस। उसमें किसी को बस रिलैक्स करना होता है, द एयर गोज आउट इटसेल्फ। आप नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करना छोड़ दें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर बराबर होने लगता है, तो जो इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स, जो आपने लेयर की होती है वो पैसिवली एक्सहेल हो जाती है। ओके, सो दिस डायग्राम वेरी नाइसली इलस्ट्रेट्स कि बेसिकली मसला क्या होता है लंग इन्फ्लेशन में। विद दिस बैकग्राउंड इन माइंड, आई विल नाउ गो ऑन टू द अपडेट्स। मुझे पता होता है रेजिडेंट्स का सवाल ये होता है, चल ठीक है करना क्या है जब प्रीटर्म बेबी आ जाए, ठीक है? सो अब वाला जो पोर्शन शुरू हो रहा है ना, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। सो अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो ये है कि हमने
करना क्या है प्रीटर्म बेबी की रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए. So whatever data I'm going to share with you is taken out of European consensus guidelines. आप में से किसी को पेपर चाहिए होगा मेरे से ले लेना. वो late 22 में that's the latest guidelines of what to do. The latest क्या कहना चाहिए उसके evidence based guidelines on what to do for respiratory support, ventilatory support of a preterm baby. और इसमें काफी concepts ऐसे हैं जो change हुए हैं. I would like you to know about it. So पहला वाला part prenatal care, this is just for you to know. मैंने ये slide लगाई है कि actually prevent prematurity. You want to prevent RDS, prevent prematurity, which is strictly not our domain. It is the domain of the obstetrician. लेकिन आपको कुछ idea होना चाहिए. और मैं मोटी-मोटी बातें आपके साथ share कर देती हूँ. अगर आप maternal nutrition को improve करेंगे, teenage pregnancy को prevent करेंगे, pre-eclampsia के लिए early screen करेंगे, inter-pregnancy spacing is ensured, and in case of IVF, single embryo transfer, because the obstetricians have a tendency to transfer several embryos, 4-6 embryos, तो obviously वो बच्चे उतने preterm develop होते हैं and the chances of RDS increase. And then use of progesterone, because ये भी अब guidelines में है कि women who are prone to have preterm deliveries, have shortened cervix, are helped by local progesterone application. So, and then this is very important that we all must insist on in utero transfer. So, if there is a preterm pregnancy, और सारे अस्पतालों में होता है, the hospitals may not be equipped to deal with a preterm baby, but the obstetrician doesn't care. उन्होंने बस delivery करनी है और आपके वाले करने हैं. So, this is why you need to have this continuous communication with the obstetrician. The best way of transferring a preterm baby to a better center is in utero. Deliver होके transfer नहीं उसको करना, mother को transfer करना. Okay, this is what everybody should know कि उनकी capacity neonatal unit की कितनी है. और अगर एक खास gestation rate से कम है, then there's no problem. सारी दुनिया में ऐसे not every center can be a level 3 tertiary care center. Insist that this lady should be transferred. ये नहीं कि deliver यहाँ पे करके बच्चा आपके वाले करने और फिर बच्चे को आप transfer कर देते हो. That's always more risky. And then antibiotics for preterm rupture of membranes. Other things that are being used that you should be aware of is MagSafe, like magnesium sulfate in less than 32 weeks of gestational age. अगर women go into labor, अपनी perinatal meeting में अपनी obstetrician के साथ होकर, this has a protective effect on brain damage. So cerebral palsy के chances को decrease करती है. Tocolytic drugs to buy time. And prenatal steroids, because this is one of the things that has changed the outlook of prematurity, is giving mother steroids. और इसकी बहुत सी details हैं, I won't go into the details of less than 34 weeks. It is recommended कि बाहर के betamethasone या फिर dexamethasone दी जाती है 2 doses 12 hours apart. That is good for 24 to 7 days. 7 days के mother की labor हो गई, 7 days से मामला आगे चला गया, 14 दिन बाद फिर आ गई labor. You can repeat a second dose of steroid provided the gestation is less than 32 weeks. 32 weeks से ऊपर हो गई तो दूसरी डोज नहीं देते, उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं स्टीरॉइड्स लेने के फायदा कम है. ओके, अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है. Now, before I go on to discuss all this, मैं आपको क्रक्स में दे देती हूँ न्यू preterm ventilation का concept क्या है. The concept of preterm ventilation is to minimize harm. So we are now focused on gentler ventilation strategies, on the use of non-invasive ventilation, on avoiding mechanical ventilation as far as possible, and then extubating the baby as early as possible. So do no harm वाला principle यहाँ पे आ गया है. Help the baby maintain ventilation but do no harm. And it's very interesting, और मैं हमेशा से कहती आई हूँ पाकिस्तान में non-invasive ventilation is now preferred. Invasive ventilation मैंने आपको कहा ना positive pressure ventilation. जब भी आप air forcefully pushing out करोगे, lung damage होगा. Non-invasive ventilation is actually not in the sense आप force से air pushing and out नहीं करें, आप baby की अपनी ventilation को यूटिलाइज करते हुए उसको सपोर्ट करते हो. लेकिन जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन आपकी उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली CPAP जिसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? बेबी को जिसको आप CPAP लगाते हो, व्हाट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट?
अपनी ब्रीदिंग होनी चाहिए ना उसकी। अगर कोई बेबी एपनिक है, ब्रीद ही नहीं कर रहा, फिर तो सीपैप में कराते, फिर तो आपको उसको वेंटिलेट करना ही करना। सो रिमेंबर दैट्स द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट, ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो की और सीपैप की, कि बेबी की अपनी रेस्पिरेटरी एफर्ट होनी चाहिए, सपोर्टिंग दैट रेस्पिरेटरी एफर्ट। ओके, सो अब जो जरूरी है इज डेफर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग। इसका क्या फायदा? व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग? delayed cord clamping. ओके, सो अब एनआरपी में भी आ गया न्यूबॉर्न रिससिटेशन प्रोग्राम, इसमें भी कॉर्ड क्लैंपिंग को आप डिले करें, प्रेफरेबली जब बच्चा पहला ब्रेथ ले ले उसके बाद कॉर्ड को क्लैंप करें। इट्स नॉट रेकमेंडेड 30 to 60 seconds। एनआरपी की गाइडलाइन है अगर बेबी ट्रबल में क्विकली कॉर्ड क्लैंप द कॉर्ड, ब्रिंग द बेबी टू द रिससिटेटर, बट नाउ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्पेशली डिजाइन रिससिटेशन ट्रॉलीज जो कि मदर के बिल्कुल पास लग जाती हैं, ताकि आप अपनी रिससिटेशन करते रहें और कोशिश करें कि कॉर्ड को लेट क्लैंप करें। अगर आप अर्ली कॉर्ड नहीं क्लैंप कर सके तो देयर आर गाइडेंस टू से कि आप कॉर्ड को मिल्क कर लें, बट नॉट लेस देन 28 वीक्स। अगर 28 वीक्स के कम के बच्चे के आप कॉर्ड को मिल्किंग समझते हो, क्लैंप करके तो फिर उसको निचोड़ देते हैं, जो हमारी बहुत सी मिडवाइफ करती नहीं है। Less than 28 weeks में this procedure has been associated with IVH। otherwise अगर आपको बच्चे को जल्दी लेके जाना पड़े माँ से लेदा करके जल्दी कॉर्ड क्लैंप करके, and provided this baby is above 28 weeks then you can milk the cord। For spontaneously breathing preterm babies there's a lot of work on CPAP, so start these babies on CPAP। CPAP है डॉक्टर हुमायूं यहाँ पे आपके पास? बबल सीपैप is equally good। तो अगर एक बेबी जो प्रीटर्म डिलीवर हुआ है and is showing signs of distress, so now what is recommended is कि आप उसको लेबर रूम में CPAP पे डाल दें, and you start off with a pressure of 5 to 6 centimeters of water। 5 to 6, that is your starting pressure। although इसकी वो there's nothing to say pressure कि आप 9 तक भी जा सकते हो, but usually the starting pressure is 5 to 6 centimeters of water। अगर obviously बच्चा प्रीटर्म डिलीवर हुआ है जो ट्रबल में है, वो ब्रीथ नहीं कर रहा, फिर आपने क्या करना है? फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन। जी, एपनिक है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन। एपनिक है तो आपने लंग्स इन्फ्लेट करने, गोल्डन मिनट का कॉन्सेप्ट है ना कि आप उसके लंग्स इन्फ्लेट करें। लंग्स आप किस तरह से इन्फ्लेट कर सकते हैं? जी, बैगिंग से। शाबाश, ज़्यादातर हम बैगिंग करते हैं। और अच्छा, अब इसमें जो नई गाइडलाइंस है वो कह रही है कि टी पीस इज बेटर देन सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। दिस इज अ टी पीस, मैं भी आपको भी दिखाती हूँ। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को नॉर्मल बैग है, जो टम्बू बैग जिसको आप कहते हो, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उनके साथ ये मैनोमीटर नहीं होता। बहुत से बैग से साथ मैनोमीटर अटैच है, सो टी पीसेस के साथ ये मैनोमीटर होता है एंड इट हेल्प्स यू एडजस्ट योर पिप एंड पीप। तो जहाँ पे तो आपके पास और नहीं है तो आप बैग यूज करो, लेकिन it is preferable to have a T piece where you can see what the figures are, जिसमें आप inflation breath दे रहे हैं। What is recommended is कि 20 to 25, but chest rise देखें, improvement in saturation देखें। For a term baby you can go up to 30 centimeters of water। और अब जो नई चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि instead of doing face mask, you do nasal mask के साथ nasal inflations करें, because face mask can cause stimulate the trigeminal nerve and cause reflex bradycardia। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास nasal mask तो जो हर जगह नहीं है, but because we are discussing updates just for you to know, nasal masks are available, इतनी freely available नहीं है, but this is a preferable method। nasal mask और उसके साथ आप controlled breaths deliver करें। So अगर बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, irregularly ब्रीथ कर रहा है, तो before you stick on your CPAP आप इसको inflation breaths दें। पहले inflation breaths में हम बताते थे sustained inflation breaths, those are harmful। sustained inflation breaths किसने सुनी है? कि पहले NLS करते थे ना, न्यूबॉर्न लाइफ सपोर्ट, हम कहते थे sustained inflation breaths, जिसमें आप forcefully for a few minutes उसको for a few seconds hold करते, that's not recommended। So जिस तरह आप बस inflation breaths दें, sustained inflation breaths ही दें। So breathing उसकी जो है आपने वो करनी है, lung inflate करना है और उसके बाद उसको if he starts breathing then you start on nasal CPAP। ये इतनी वीडियो चलेगी कि नहीं, लेकिन anyway यहाँ से आप जो है उसकी पीप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको दिखा दो, पहले तो है ये आपके पास है, आज लेकर आए हो, फिर मेरे को दिखा देते हैं। ये आसिफ ही इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। आसिफ याद है जब ये वीडियो बनी थी? चलो बेटे कोई बात नहीं चलती तो,
और इसके मैनोमीटर के ऊपर ना ये आप देख लो जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे आप डेंजर जोन्स रीच कर रहे हो, यहाँ पे आपको वार्निंग है, सो ग्रीन जोन इज सेफ, यहाँ तक आप प्रेशर ले, दिस इज यूजुअली 25 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो आप इन डायल्स के साथ पिप और पीप दोनों सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी अभी चल रही है, ठीक है, अब आगे चलते हैं इसको। अच्छा रिमेंबर यू हैव टू यूज हीटेड ह्यूमिडिफाइड गैसेस, ड्रायर से नहीं वेंटिलेट करना, heated to about 37 degree centigrade and 100% humidified, और आपने blended यूज करनी है एयर ऑक्सीजन मिक्सचर। जो आपका NRP है उसमें इस तरह का टेबल दिया हुआ होता है जिसमें बताया हुआ होता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पे कितनी सैट्स आपने अचीव करनी है, डू नॉट एक्सीड दी सैचुरेशन। धड़ाधड़ उसको बैगने की जरूरत नहीं है, इफ इज ऑलरेडी अचीविंग दी सैचुरेशन एंड बाय द वे इट इज रिकमेंडेड कि जब आप प्री टर्म को या टर्म को भी रिसस्टेट करें तो हैव योर मॉनिटर सम फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस जो आपको सैचुरेशन बता सके, अदरवाइज पुराना तरीका आप रफली उसके कलर से और चेस्ट राइज से उसको करते हो। अगेन देयर इज एम्फसिस ऑन यूजिंग एयर फॉर रिसस्टेशन एंड टर्म बेबीज। व्हाई? धड़ाधड़ ऑक्सीजन क्यों नहीं देते? particularly retinopathy of prematurity, blindness होती है। तो आपने जो जितना टर्म बच्चा है particularly अगर 32 या 35 वीक्स से ऊपर है, different figures, different people have different cut off points, then use air। अगर SATs target SATs नहीं आ रही then you can increase the concentration of oxygen। प्री टर्म बच्चा है less than 28 वीक्स तो आप उसमें बेशक blended air oxygen mixture, वो भी recommendation है 30% की। तो अगर ये अचीव नहीं हो रही फिर आप उसको इंक्रीज करते जाएं। एंड ऑब्वियसली यू ऑल नो कि प्री टर्म बच्चों में प्लास्टिक रैप्स यूज करें क्योंकि ट्रांस एपिडर्मल हीट लॉस किन तरीकों से हो सकता है? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। और प्री टर्म में इवेपोरेशन बहुत होती है बिकॉज उनकी जो स्किन होती है वो कैरेटिनाइज नहीं होती, तो अ लॉट ऑफ हीट वो इसी तरह ना जब आप वो मतलब कि यू टेक अ बाथ यू स्टैंड अंडर द फैन, जो हम टैप वाटर स्पंजिंग बच्चों में करते हैं, दैट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ लूजिंग हीट। तो इसलिए हम कहते हैं इनको प्लास्टिक रैप्स में जो भी आपके आम प्लास्टिक मतलब अच्छे क्वालिटी जो आपके फ्रीजर बैग्स मिलती है उनमें आप डिलीवर कर सकते हो बिकॉज दैट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन। ओके सो सर्फैक्टेंट द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देना है। सो हियर यू हैव अ बेबी जो प्री टर्म था, वो इफेक्टिव ब्रीदिंग नहीं थी, आपने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी, आपका बेबी 28 वीक्स का था तो आपने 30% ऑक्सीजन से शुरू करके उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी। अगर आपके पास नेजल मास्क है तो नेजल मास्क यूज करके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी, उसके लंग एक्सपैंड हो गए, उसने ब्रीथ करना शुरू कर दिया, आपने उसको सीपैप लगा दिया और अब आप उसको अपने वार्ड में ले गए। अब मुझे बताएं सर्फैक्टेंट किसको देना और किसको नहीं देना, इंडिकेशंस क्या हैं? इंट्यूबेशन की है तो हमने उसको सर्फेक्टेंट देना है। हाँ तो मैंने आपको सुना भी बताया इसमें तो इंट्यूबेशन है, तो वो आपकी बात ठीक है। अगर 30 वीक से कम किसी भी वजह से आपको इंट्यूबेशन करनी पड़ गई है, और याद रखिए इंट्यूबेशन को अदरवाइज आप आजकल अवॉइड करें, देन बाय ऑल मींस गिव सर्फैक्टेंट। अदरवाइज व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एंड अप अंटिल 2013 द गाइडलाइंस वर कि बच्चों को आप प्रोफिलैक्टिक सर्फैक्टेंट दें रादर देन रेस्क्यू। दोनों का डिफरेंस आप समझते हो? प्रोफिलैक्सिस इज के आरडीएस शुरू होने से पहले उनको सर्फैक्टेंट दे दो। और पहले ये इतना पॉपुलर था कि व्हेन आई वाज ट्रेनिंग इन द यूके तो मेरी कंसल्टेंट कहती थी कि उसके लंग्स भी एक्सपैंड ना करो, वो डैमेज शुरू हो जाएगा, सबसे पहले ट्यूब डालें, सर्फैक्टेंट दें, उसके बाद लंग एक्सपैंड करें। तो उस वक्त हम बड़ी मुसीबत होती थी कि प्री टर्म बच्चा है उसको आपका ये भी होता था कि लंग्स को एक्सपैंड करेंगे उससे पहले ट्यूब डालो, सर्फैक्टेंट दो, फिर अब वो बैग के थ्रू उसको, दैट इज आउट नाउ। वी डू नॉट रिकमेंड prophylactic surfactant anymore because there are studies to show intubation is a traumatic procedure and children can deteriorate. So now the emphasis is on early rescue. Early rescue का मतलब है कि उसको RDS के features हों, this child has RDS and you think your clinical acumen says may want to need mechanical ventilation because आपका concept है कि mechanical ventilation invasive आपने हर सूरत avoid करनी है तो उसको आप surfactant दें। Not prophylactic but early rescue. So how early is early rescue? अच्छा अब वही बेबी पे आ जाओ, आप उसको सीपैप लगा के ले आए, अब वो आप देख रहे हो कि उसकी सीपैप पे
प्रेशर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो गाइडलाइन से 2 घंटे पे अगर आप CPAP का प्रेशर आपका 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आपकी FiO2 30% से ज़्यादा है, तो 2 घंटे में डिसाइड कर लें कि इसको मैंने सर्फैक्टेंट देना है। सो दिस इज अर्ली रेस्क्यू। आपने रेस्क्यू किया, RDS है उस बच्चे को, यू आर श्योर, लेकिन प्रोफिलेक्टिकली नहीं दिया और उसको सारा दिन छोड़ नहीं दिया, 2 घंटे के अंदर अंदर आपने डिसाइड कर लिया। एंड इफ यू वेरी एक्सपीरियंस देन यू कैन टेल कि इस बच्चे का डिस्ट्रेस बढ़ा है, 1 घंटे से पहले भी आप फैसला कर सकते हो। अच्छा, नई चीज इसमें ये है कि पहले अभी भी हम डिसाइड करते हैं एक्सरे करके, बट गाइडेंस डू नॉट रिलाई ऑन एक्सरे। कह रहे हैं आप एक्सरे मत देखिए, आप क्लिनिकल एक्यूमेन यूज करें, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग यूज करें, टेक योर डिसीजन टू गिव सर्फैक्टेंट, क्योंकि आपका बॉटम लाइन है कि आपको वेंटिलेशन हर सूरत में अवॉइड करनी है। अच्छा, और चीजें देखें, दिस लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लंग अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिनमें से आपने हमारे वो अटेंड की थी सिम्पोजियम, उसमें एक वर्कशॉप रखी थी, लंग अल्ट्रासाउंड स्कैन इज अ बेडसाइड टेस्ट। आई हैव बीन डूइंग इट, दीस गाइस डू इट। और आसिफ मुझे बता रहे होते हैं कि ये बी लाइंस नजर आ रही है, फॉर दिस RDS तो बी लाइंस देख के आप सर्फैक्टेंट दे सकते हैं। सिकंदर और आसिफ अब मेरे उस्ताद बन चुके हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन, कहते मैडम बी लाइंस है, सर्फैक्टेंट देंगे। अच्छा, फिर आगे चलिए गैस्ट्रिक एस्पिरेट एनालिसिस, ये हम तो नहीं करते, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता है। सो बहुत से ममालिक में बेडसाइड टेस्ट है, बच्चे के एब्डोमेन में ट्यूब डालें, गैस्ट्रिक एस्पिरेट लें, उसमें आप कॉम्पोजिशन देख लें, सर्फैक्टेंट का कितना है, रेशियो देख लें, मैच्योरिटी कितनी है। अगर मिलती है तो ओके, दिस बेबी इज इनफ, सर्फैक्टेंट नहीं है तो उसका सर्फैक्टेंट कम है। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। सर्फैक्टेंट भी जो आपने देना है वो लेस इन्वेसिव देना है, जो ये आपको बताएंगे किस तरह से यूजिंग दिस वेरी थिन कैथेटर इन अ स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग बेबी। इसमें बच्चे की ब्रीदिंग को आप इंटरप्ट नहीं करते। आई लीव दिस वीडियो क्योंकि ये इन्होंने आपको बता देना है। तो सर्फैक्टेंट का क्लिनिकल ड्रामेटिक इफेक्ट, सो ये आधे घंटे में बच्चे के लंग, ये उस जमाने की तस्वीर मैंने ली है जिस जमाने में एक्सरे देख के हम डिसाइड करते थे। वी स्टिल डू इन मेनी सेंटर्स बिकॉज बेडसाइड अल्ट्रासाउंड इज नॉट अवेलेबल। तो लेकिन ये उस टाइम के अंदर आई टुक दिस पिक्चर्स जस्ट टू शो दैट इट हैज अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट। और ये याद रखिए व्हेन यू यूजिंग सर्फैक्टेंट इनिशियल डोज आप ज़्यादा दो। सो प्रोएक्टिव अल्फा व्हिच इज क्यूरोसर्व, अगर आप उसकी इनिशियल डोज 200 mg per kg से दोगे तो there is less a chance that you would need to repeat the dose। और ये याद रखें, अगर एक डोज से सेटल नहीं हो रहा मामला तो आपकी दूसरी डोज देनी पड़ सकती है। बट जस्ट गिव अ लार्जर इनिशियल डोज, और अगर आप वो दे रहे हो सवेंटा तो 100 mg per kg, बट सेकंड थर्ड डोज की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। RDS में तो आप देते ही देते हो सर्फैक्टेंट, बट यू कैन आल्सो गिव इट इन RDS कॉम्प्लिकेटेड विद कंजेनिटल निमोनिया, पल्मोनरी हेमरेज, सीवियर निमोनिक एस्पिरेशन, क्योंकि ये दोनों चीजें सर्फैक्टेंट को इनहिबिट करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। सो दीस आर आल्सो नॉन RDS लाइक कंडीशन। अच्छा जी, सो अब आपके बेबी को आपने, वो आया था जो चला था हमारा, हमने इसके लंग्स इन्फ्लेट किए, उसको CPAP पे डाला, फिर हमारे पास आया 2 घंटे में मैंने देखा कि इसका प्रेशर तो ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे टारगेट सैचुरेशन क्या देखनी है 92, 94, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मेरा जो बेबी था, हमारा जो थियोरेटिकल बेबी था, हमने देखा कि उसका प्रेशर तो 6 पे चला गया है, तो FiO2 जो है 30% से मुझे इसका सैचुरेशन 89 आ रही है। तो मैंने डिसाइड किया नहीं इसको सर्फैक्टेंट देना है, तो मैंने सर्फ कैसे इसको सर्फैक्टेंट दिया। अभी आपको बताएंगे सर्फ कैसे किस तरह देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपने ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देनी है, और बाय द वे ये भी रिकमेंडेड है कि आप एयर ऑक्सीजन मिक्सचर दें जो ह्यूमिडिफाइड और हीटेड, नॉट प्योर ऑक्सीजन। आपकी टारगेट सैचुरेशन 90 to 94। सो दिस बेबी गॉट स्टेबलाइज्ड, उसका डिस्ट्रेस खत्म हो गया। What am I aiming at now? To maintain a saturation between 90-94%. And you can give oxygen in a number of ways, जो आगे बता सकते हैं। जो हम usually कहते हैं that's low flow oxygen. So if it's less than 2 liters per minute, it's low flow. If it's anywhere between 2 liters and 8 or 10 liters per minute, then it is called high flow. So it's humidified high flow nasal cannula oxygen, जो कि बहुत फेवरेट है CPAP की तरह, ठीक है। बिकॉज आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आप उसकी हाइपरऑक्सिक रखोगे तो क्या होगा, ROP, और अगर कम रखोगे 90 से कम रखोगे हाइपॉक्सिया, IPAH, ये सारी चीजें, लटरम, you can have neck, you can have babies dying,
तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप उसको 90 to 94 के बीच में रखें, अपनी अलार्म लिमिट्स 89 और 95 पे सेट कर लें, बहुत टाइट उसको रखें। ओके, सो दिस इज अ बेबी गेटिंग नेजल CPAP। ये सिकंदर मैंने चिल्ड्रन में बनाई थी जिस जमाने में मैं वहाँ पे थी, हम लोग जो बॉटल से CPAP बनाते थे। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर से CPAP, इसके आपने हीटेड ह्यूमिडिफाइड, अब इसमें जरूरी है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की इंटरफेस आपने क्या यूज करना है, फ्लो ड्राइवर्स वर्सेस बबल CPAP। बबल CPAP गरीब नवाज बहुत अच्छा है। फ्लो ड्राइवर इज डेजिग्नेटेड मशीन्स वेंटिलेटर की तरह की जो CPAP देती हैं, बट द रिजल्ट्स ऑफ बबल CPAP आर जस्ट एज गुड। बाईपैप की कोई जरूरत नहीं है, CPAP इज जस्ट एज गुड एज बाईपैप। प्रेशर आपने CPAP का बिटवीन 5 and 9 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर रखना है, और CPAP को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा वेंटिलेशन पे चला गया तो उसको वीन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको आपने एक्सट्यूबेट किया CPAP लगा, ठीक है, और आप बस इनिशियल वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम्स आपको इसके साथ पता है, नेजल ट्रॉमा होता है, नीमोथोरैक्स हो सकता है, प्रेशर्स बहुत हाई रखे, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, एंड रिमेंबर अगर आप वो यूज कर रहे हो, यू शुड बी रेडी टू स्टेप इट डाउन। तो इंटरफेस जानना जरूरी है। दिस इज द नेजल मास्क, ये रैम कैनुला है, ये नेजल मास्क लगा हुआ है, इसके थ्रू उसको CPAP मिल रही है, और ये शॉर्ट बाय नेजल वेल्व्स है, हडसन वेल्व्स है, इससे बबल CPAP आप दे सकते हो, ठीक है। इससे भी आप CPAP दे सकते हो। रैम कैनुला का ये कि इसके थिन इंटरफेस होता है। अगर आपका नेरीज जो है या नेयर्स जो है 50% से कम ऑक्लूडेड है, then you're not giving CPAP, you're actually giving humidified high flow। थोड़ा बहुत वो प्रेशर जनरेट करता है which is unmeasurable, लेकिन CPAP का समझिए कि आपके वेल फिटेड नेजल कैनुला होने चाहिए ताकि एयर एस्केप ना करे। ये वही चीज़ नहीं है। ये वीडियो स्किप कर देते हैं, चलो चला देते हैं। ये देखो, ये लेडी ना उसको दे रही है नेजल वेंटिलेशन, और वो प्रेशर डायल को देखती जा रही है। बेबी आपका आया, अच्छा वो कह रही कि चलो ये मशीन है पर्टिकुलर जिसमें दोनों मेथड्स हैं, तो वो कह रहा है कि आप उस तरह भी दे दें। तो ये जो हमारा थियोरेटिकल बच्चा चला था ना, जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ ये सारा कुछ हुआ। अगर उसकी इरेगुलर ब्रीदिंग थी, इनसफिशिएंट ब्रीदिंग थी, तो इनिशियली हमने क्या किया, हमने उसके लंग्स को इन्फ्लेट किया, प्रेशर्स को देखते हुए। वो देखो, वो 20-25 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर उसने नेजल उसको वेंटिलेशन की थी तो बड़ा आसान है, नेजल वेंटिलेशन करने के बाद उसी के साथ आप CPAP लगा दें। अगर आपने मास्क से वेंटिलेशन किया है तो फिर आपको नेजल CPAP के लिए नेजल मास्क फिट करना पड़ेगा, CPAP उसके साथ लगानी पड़ेगी, और उस तरह से आप अपने बेबी को लेकर डिलीवरी रूम से अपनी नर्सरी तक जाएंगे, और नर्सरी में जस्ट कंटिन्यू विद द CPAP, ठीक है। उसने बताया कि अगर आपने इसके इफ यू वेंटिलेटिंग, आई मीन न्यूरोलॉजी इज प्रीटी काइंड ऑफ हाई टेक इज दैट, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इक्विपमेंट क्या है। और ये वैसे नेजल मास्क अवेलेबल है ना, से मास्क तो अवेलेबल है, चलो ठीक है। अगर उसने कहा कि अगर आपने मास्क से इसको वेंटिलेट किया है तो फिर आपने जो फेस मास्क किया तो नेजल मास्क का साइज डिटरमिन करें। ये आपने नेजल मास्क फिट किए, ये उसकी बॉनेट के साथ फिट किए, और अल्लाह खैर से अब उसका CPAP जा रहा है, तो उसका एक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है जो उसकी एल्वियोलाई को टोटली कोलैप्स होने से बचा रहा है। वो बलून्स पार्टली इन्फ्लेटेड है, वो उसने डायल पे अपना CPAP सेट किया, और इस तरह ये लेके इसको ट्रांसपोर्ट कर देगी। ओके, हीटेड ह्यूमिडिफाइड, अगेन वो चीज़ें जो नॉन इन्वेसिव है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो गरीब नवाज है, हम सारे कर सकते हैं, एंड वो मैंने आपको बता दिया है। हीटेड ह्यूमिडिफाइड का फ़ायदा क्या है? एक तो उसके साथ ट्रॉमा कम है क्योंकि लूजली फिटेड है, आप बेबी को उठा के साथ ही फीड कर सकते हो, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, यू कैन क्लीन अप द फेस, प्रेशर इफेक्ट उसका कम है। और इसका प्रिंसिपल ये है कि वो जो डेड स्पेस होती है ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, ऑक्सीजन को उसमें डाल देता है, सो द बेबी कैन मेंटेन सैचुरेशन। इट्स अ गुड प्राइमरी मोडालिटी एंड इट्स अ गुड वीनिंग मोडालिटी एज वेल। सो अभी ये सर्विसेज में हम लोग के पास है, हमारे साहब के बारे में भी थे, ये एपरेटस है जिसमें से आप दोनों कर सकते हो, आप CPAP भी दे सकते हो, इसी में से इसमें आप हाई फ्लो भी दे सकते हो, थोड़ी सी आपको सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत होती है। एंड देन ऑब्वियसली जिस तरह आप ट्यूब के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हो, नाउ यू हैव वेंटिलेटर्स जिसमें आपने नेजल इंटरफेस लगा के
intermittent positive pressure ventilation दे सकते हैं, which can be synchronized or non-synchronized. Synchronized is better. तो जैसा ट्यूब के थ्रू वेंटिलेटर हवा इन एंड आउट कर रहा होता है ना, हम नेजल कैनुला के थ्रू हवा इन एंड आउट, these are special modes non-invasive ventilation के. And obviously synchronized is better. अब मुझे बताओ वैसे डिफरेंस क्या आपके ख्याल में इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव का? क्योंकि वो सारा कुछ हम नॉन इन्वेसिवली भी कर रहे हैं ना, हाई फ्लो भी दे रहे हैं, ये ऑसिलेटरी वेंटिलेशन भी कर रहे हैं. व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव? ट्यूब का क्या है? आप ट्यूब से नॉन इन्वेसिव भी कर सकते हैं. मैं वैसे कह रही थी अगर वोकल कॉर्ड्स बाईपास कर दिए ना आपने किसी के, तो दैट बिकम्स इन्वेसिव बिकॉज आपने कॉफ रिफ्लेक्स ही खत्म कर दी. दैट्स इन्वेसिव. वोकल कॉर्ड से ऊपर ऊपर आप जो मर्जी कर लो, दैट्स नॉन इन्वेसिव. ठीक है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस. आपने कॉफ रिफ्लेक्स सप्रेस नहीं की. ओके, देन मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर करनी है तो आपको करनी पड़ेगी. मैकेनिकल वेंटिलेशन में मैं आपको थोड़ा सा नाउ द एम्फेसिस जो मैंने आपको बताया, डैमेज नहीं आपने करना बच्चे के लंग्स को. तो आपने सिंक्रोनाइज वेंटिलेशन क्या होती है? जी बेबी ब्रीदिंग कर रहा है Breathing के साथ में. सो वेंटिलेटर स्मार्ट है, वो सेंस करता है बच्चे ने ब्रीदिंग की, उसके साथ बैठ जाता है. अदरवाइज अगर नहीं देगा, नॉन सिंक्रोनाइज होगी तो क्या उसका नुकसान क्या है? तो अपनी ब्रेथ Stop. वो इनसेंट्री नहीं है. बेबी जो है वो ब्रीद आउट कर रहा है, वेंटिलेटर उसको ब्रेथ इन दे रहा है. सो जो ना आप ब्रीद आउट कर रहे हो, मास्क रखे उस वक्त आपको एयर पंप इन कर, दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स. And then what is volume targeted ventilation? So synchronized ventilation is better. Volume targeted ventilation क्या है? इसमें हम टाइडल Tidal वॉल्यूम volume सेट set करते हैं. So हम लोग pressure ventilation करते हैं न्यूबॉर्न्स में. But now the ventilators are very smart. तो आप, और ये special mode है, so you can't go it everywhere. You said volume targeted ventilation, जिसमें आप tidal volume feed in कर देते हो. So tidal volume initially predetermined 5 to 7 ml per kg. वो आप उसकी लिमिट सेट कर देते हो. रियल टाइम में वेंटिलेटर डिटेक्ट करता है कितना ही वॉल्यूम अंदर जा रही है और बाहर आ रही है. बेबी की जिस तरह लंग कंप्लायंस इंप्रूव करती है, आपको पता है आरटीएस 48 आवर्स में इंप्रूव होना शुरू हो जाता है. जो जो उसकी लंग कंप्लायंस इंप्रूव करती है, वेंटिलेटर ब्रेथ टू ब्रेथ वो अंदाजा लगा लेता है. अगर वो देखता है कि बच्चे की कंप्लायंस बेहतर है, उसी प्रेशर पे टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वो प्रेशर ड्रॉप कर देगा टू मेंटेन द टाइडल वॉल्यूम. सो द वेंटिलेटर इज वेरी स्मार्ट. ब्रेथ टू ब्रेथ वो लंग कंप्लायंस कैसे असेस कर रहा है, वॉल्यूम की बेसिस पे जो ब्रीथ इन एंड आउट हो रही है, और अपने प्रेशर को सेट कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज वॉल्यूम टारगेटेड वेंटिलेशन. एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन इज बेटर. बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर्स नहीं है, बट हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन इज एक्सपेंडिंग द लंग्स एंड देन गिविंग जेंटल वेंटिलेशन थ्रू वाइब्रेशंस. तो जब जेंटल वेंटिलेशन होती है तो लंग डैमेज नहीं होता. ठीक है, so that is why high frequency oscillatory ventilation has minimal lung damaging effect. तो recap करते हुए नॉन इन्वेसिवली बच्चों को वेंटिलेट करें, CPAP दें, हाई फ्लो दें. कुछ बच्चों में 50% में आपको इन्वेसिवली वेंटिलेट करना ही पड़ेगा. अगर करना पड़ रहा है, सिंक्रोनाइज रखें, वॉल्यूम टारगेटेड रखें. अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेटर है, कीप इन माइंड दैट इज लेस डैमेजिंग देन कन्वेंशनल वेंटिलेशन. And extubate the baby as early as possible. ये नहीं कि वेंटिलेटर पे पड़ी जा रहा है, चली जा रहा है, बेहतर हो रही है, सैड्स आप 20% पे उसको वेंटिलेट करते जा रहे हैं. I always used to say कि बेबी ने खड़े होकर नहीं कहना, excuse me, please extubate me. ठीक है, it is your decision. You have to extubate as early as possible. और extubation directly usually आप नहीं करते, into some lesser form of ventilatory support, which we usually use CPAP, और उसके बाद high flow, और उसके बाद extubation. ठीक है, that's what is recommended. आप उसको synchronized nasal intermittent positive pressure में भी extubate कर सकते हो, but since this modality is not available with everyone, my guidelines for you would be कि ventilate करें बच्चे को as early as possible. The baby allows extubate करें उसे, extubate into either nasal CPAP. Nasal CPAP के बाद जब उसके आपके pressures low होने लगे, 5 सेंटीमीटर से वाटर से कम जा रहे हैं, FiO2 आपकी 25% 20% में आ गई है, go on to humidified high flow. Humidified high flow में आप flow कम करते हैं. जो भी आप 2 लीटर्स पर मिनट से नीचे जाएंगे, आपका supplemental oxygen low flow शुरू हो जाएगी. And from there you can either go to an ambient oxygen enriched जो incubator में आप छोड़ देते हो, और just extubate into it. Caffeine का रोल बहुत, ये प्लीज दें.
This improves lung mechanics, aminophylline से बेहतर है, इसका safety margin बेहतर है, ये doses आपके सामने लिखी हुई हैं. There are plenty of studies to show कि less than 32 weeks में आप दे दें caffeine. And when you have totally ventilated a baby, जब आप extubation की तरफ जा रहे हैं, तो definitely start caffeine. Permissive hypercarbia क्या है? अगर आपका pH 7.22 से ऊपर है, do not trace carbon dioxide. मैंने आपको कहा था emphasis is on gentler ventilation, except CO2 between 37 and 52 millimeters of mercury, provided your pH is above 7.22, because blowing off too much carbon dioxide leads to constriction of cerebral vessels, cerebral ischemia, and can cause periventricular leukomalacia because cells in the brain start dying off. उसकी perfusion कम होती है and then they will necrose. But severe hypercapnia, of course, उसकी अपने problems हैं. So again, do not chase CO2 if your pH is okay and your CO2 is at less than 52 millimeters of mercury. Post-natal steroids. अच्छा ठीक, ये पहले था जब हम देते थे, फिर हम नहीं देते थे, दोबारा से हम दे रहे हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया आपका एम है कि जितनी जल्दी बच्चा एक्सट्यूबेट हो सके कर लो. अगर आपके बच्चे को 1 to 2 वीक्स और इससे ज़्यादा होने लगे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, तो लो डोज डेक्सामेथासोन 0.9 mg/kg per day for a few days will help in extubation क्योंकि edema कम करेगा. But remember, steroids may be associated with spontaneous intestinal perforation and particularly if you have poor neurodevelopmental outcome. So if you're working in good centers, वो आप पेरेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन लीफलेट देते हैं, उनसे सिग्नेचर्स लेते हैं कि हम इस बच्चे को 1 हफ्ते के लिए स्टीरॉइड्स देने वाले डेक्सामेथासोन दे रहे हैं. पेन एंड सेडेशन में अगेन इसमें भी बहुत चेंजेस. व्हेन आई वाज ट्रेनिंग हम लोग सारे बच्चों को मॉर्फिन देते थे बिकॉज कॉन्सेप्ट ऐसा कि उनको बिल्कुल पेन. बट नाउ इट्स द रोल इज वेरी लिमिटेड. सो आप पेन स्कोर्स पे जाएं. पेन स्कोर्स पे अगर आपको लगता है बच्चा पेन में है तो आप उसको नॉन सेडेटिव पेन रिलीफ दें. Try to avoid sedation of babies as far as possible because again मैंने आपको कहा था आपका पैराडाइम ये है कि जितनी जल्दी एक्सट्यूबेट कर सकें कर लें. जब भी आप उसको sedation देते हो आप उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे लेके जाते हैं. ठीक है. सो अब इसकी भी कुछ इतनी वो जरूरत करनी नहीं है. एंटीबायोटिक्स go over quickly. एंटीबायोटिक्स की गाइडलाइंस अलग से ये इसमें भी वैसे उन्होंने दिए हैं कि अनवारंटेड नहीं यूज करें. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोडियम ऐड करें once the baby has lost 5% of body weight, which is around day 3, and they're saying कि इन्होंने जो data study किया था, we are giving too much saline boluses. तो बिला वजह के अगर perfusion कम है, by all means, refill time आपका 3 seconds से ऊपर है, by all means, you can bathe rape because I know residents have a tendency to give a lot of saline boluses, unnecessary नहीं देनी है. Then इस पे I'll skip over very quickly क्योंकि ये आपकी जो RDs पे जब आप बच्चा मैनेज कर रहे हो तो you have to look at blood pressure, perfusion, you have to give supportive care in terms of monitoring, temperature control, keeping the baby comfortable. Or I think this is my last slide. ये sort of table है, I can leave this with you, and these just form guidelines on what to do in what situation. So low risk babies को high flow CPAP initiate करें, moderate risk को वही CPAP इनिशिएट करें, कंटिन्यू CPAP, कैफीन दें, अर्ली रेस्क्यू सर्फैक्टेंट दें. हाई रिस्क को इनिशियल स्टेप वही है, इनिशिएट CPAP और नॉन नेजल इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, कैफीन दें, एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है एंड अर्ली रेस्क्यू सर्फैक्टेंट दें. नाउ रिमेंबर मोस्ट केसेस ऑफ प्री टर्म लेबर, एक तो वो बच्चे ने जो गायनेकोलॉजिस्ट से प्री टर्म डिलीवर किया है, दैट बेबी इज ओके. लेकिन स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ प्री टर्म लेबर अगर हो तो very important cause of spontaneous onset of preterm labor is poliomyelitis. So those babies should be covered with antibiotics until you have negative culture results. And so recapping milestones in management जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं: antenatal steroids, appropriate resuscitation, supportive management, deferred cord clamping, use of early rescue surfactant, use of delivery room nasal CPAP. Don't let the baby struggle. Delivery room में इसको CPAP पे डाल दो. And gentler modes of ventilation. Accept lower pressures, accept lower rates, as long as your gases are holding and your baby is clinically well. And extubate this baby as early as possible. ये सारे references थे, मेरे से ले लेना. And thank you. Any questions?
नहीं यार, क्वेश्चन से पूछो। मैम आप इतना अर्ली एक्सट्यूबेशन पे एम्फोसिस कर रही हैं, हाँ, लेकिन जो गाइडलाइन कुछ गाइडलाइन जिस तरह एनेस्थीसिया के कुछ जो रेजिडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपकी जब तक पैथोलॉजी रिजॉल्व नहीं होती तब तक आप पेशेंट को एक्सट्यूबेट ना करें। यू आर राइट, बट RDS की पैथोलॉजी कब रिजॉल्व होती है? Your RDS will resolve within 48 to 72 hours. And obviously you have to go by the baby, लेकिन ये याद रखें कि आपकी ventilation is coming at a cost. I have seen, I don't strictly agree with you. एक बेबी सपोज या एक इवन एडल्ट निमोनिया के साथ आया है और अपनी गैसेस मेंटेन करो, बेहतरी की तरफ जा रहा है, एयर में वेंटिलेट, व्हाई डू यू वांट टू वेंटिलेट दिस गाय? टोटल रेजोल्यूशन में तो टाइम लगना है ना। The resolution has to be enough for a person to spontaneously support his breathing. As soon as you reach that point, extubate. क्योंकि आपको क्या नुकसान है prolonged, ये तो हमने कहा barotrauma, polytrauma, उसके अलावा आपके ventilation associated pneumonias. You bypass the vocal cords, you suppress the cough reflex, you risk the chance of aspiration, you risk the chance of patient lying in bed, developing pressure sores, developing deep vein thrombosis. ये मैं adult patients की बात कर रही हूँ. It comes at a cost. Ventilation is at a cost. Not to mention that you increase the cost of medical care. ठीक है जी? जी. आपने कहा था कि जब अर्ली साइंस आते हैं तो हम सर्फेक्टेंट दे देते हैं, लेकिन जब फुल ब्लोन डेवलप हो गए RDS तो फुल ब्लोन को कैसे कहोगे RDS? यानी कि उसमें फिर रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज और रेडियोलॉजिकल साइंस है उसमें। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आपने उस नौबत पे जाने नहीं देना। ठीक है। गाइडलाइंस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। आप प्रीटर्म बेबी को नेसल सीव आप लगा के ले आए हो, अब छोड़ नहीं उसको देना, ठीक है। उसको देखते रहना है। तो 2 hours पे लोगों ने दिस इज द 2 hour assessment एंड पीपल, और आपकी असेसमेंट क्या होती है कि क्या ये बच्चा मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर आपको लगता है वो जा रहा है तो उसे सर्फेक्टेंट दे दें। और इसका ऑब्जेक्टिव भी किस तरह लोगों ने ऑब्जेक्टिवाइज किस तरह किया है, द स्टडीज टू शो दैट 2 hour FiO2 and CPAP pressures are good indicators of babies who may go on to need mechanical ventilation. वो बच्चे जिनका 2 घंटे में 30% से ज्यादा ऑक्सीजन और प्रेशर उनका 6 सेंटीमीटर से ज्यादा था, स्टडीज शोड दैट दे वर वेरी लाइकली टू नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन लेटर ऑन। तो वहीं पे उनको सर्फेक्टेंट दे दें, बिकॉज़ मेनी ऑफ देम विल देन नॉट नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन। हैविंग सेड दैट, जो मैंने आपको स्लाइड बताई थी 28 वीक्स में अगर आप बच्चे देखें, आपकी तमाम तर एफर्ट के बावजूद 50% तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पेश आएगी और 50% फर्स्ट एक्सट्यूबेशन को फेल भी करेंगे। जहाँ जरूरत है वहाँ करें। लेकिन ये गाइडलाइन जो मेरे ज़हन में इसका लुबे लबाब आया है, एंड यू नो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, कि आप गैर जरूरी मत करें वेंटिलेशन को अवॉइड करें इफ पॉसिबल एट द मिनिमल ट्रॉमा एंड कॉज मिनिमल ट्रॉमा टू द बेबी। बहुत एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो अंदाजा, जिस तरह अगर आसिफ होगा या सिकंदर होगा, दे नो इवन एट 1 hour कि कितना बेबी स्ट्रगल कर रही है, यू कैन टेल किस बेबी पे डाउन जाना है, उसको आप 1 घंटे बेबी से बैठे। बट माय पॉइंट इज, जिस तरह हम लोगों ने जहालत के, खैर यू नो मेडिकल नॉलेज एडवांसेस, दैट वाज द बेस्ट एविडेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। हम जब बेबी रिसीव करते थे उसके लंग एक्सपेंशन से पहले हम इंट्यूबेट उसको करते थे, व्हिच बाय द वे इज द रॉन्ग वे ऑफ गिविंग सर्फेक्टेंट नाउ। आई मीन नॉट द रॉन्ग वे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नॉन इन्वेसिवली दें, मिनिमली इन्वेसिव थे। तो हम एंड्रो क्या करते थे, एंड्रोट्रीकल ट्यूब डालते थे, सर्फेक्टेंट हमारा रेडी होता था, सर्फेक्टेंट उसको देते थे, बैक करते थे ताकि सर्फेक्टेंट सारा स्प्रेड कर जाए, फिर एक्सट्यूबेट करते थे। ये अब आपको बताइए वो क्या चीज़ है इंश्योरेंस। लेकिन नाउ दैट्स नॉट रेकमेंडेड। जैसे प्रोफिलैक्टिकली ना दें, देख लो, उसे तो ना बच्चे को जरूरत पेश है। और पाकिस्तान में आई थिंक फॉर द रीजन कि स्ट्रेस प्रेगनेंसीज होती है, मेनी आई सी मेनी प्रीटर्म बेबीज हु एक्चुअली हैव डन रियली वेल इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेशन। 28 वीक्स में कितने बच्चे हमने देखे हैं जिनको, जो अभी आपने जो ये 26 वीकर था ना, जिसको वेंटिलेट नहीं करना पड़ा था, सीपैप पे वो ठीक हो गया था वेंट को।